नमस्कार, मैं राजीव व्यास वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। आप विधायक अमानतुल्ला ईडी के हाथों गिरफ्तार। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में 4 घंटे की पूछताछ। 5 दिन में तीसरी बार वडोदरा आए हर्ष संघवी। भाजपा के डैमेज कंट्रोल की कोशिश। वडोदरा में बाढ़ पीड़ितों को राशन किट का वितरण नहीं, कम हो रही लोगों की नाराजगी। दिल्ली में ईडी ने कथित शराब नीति घोटाला मामले एक और आम आदमी पार्टी के नेता को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज सोमवार को आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को अरेस्ट कर लिया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए ईडी सुबह अमानतुल्ला के घर पहुंची थी। सुबह 8:15 बजे से उनसे घर में ही पूछताछ और जांच की जा रही थी। 4 घंटे पूछताछ के बाद दोपहर 12:15 बजे ईडी अफसरों ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। ओखला सीट से विधायक अमानतुल्ला पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहते हुए 32 लोगों की अवैध भर्ती कराई और फंड का गलत इस्तेमाल किया। वक्फ की संपत्तियों को किराए पर दिया। ईडी पहले भी 2 बार अमानतुल्ला से पूछताछ कर चुकी है। गुजरात के वडोदरा जिला में बाढ़ पीड़ितों को राहत दिए जाने पर गुजरात के गृह मंत्री और वडोदरा के प्रभारी मंत्री हर्ष संघवी ने रिव्यू बैठक ली। गुजरात के वडोदरा में बाढ़ के बाद राहत की कार्यवाही की जानकारी लेने के लिए गुजरात राज्य के गृह मंत्री और वडोदरा के प्रभारी मंत्री हर्ष संघवी ने कलेक्टर कार्यालय में बैठक का आयोजन किया, जिसमें वडोदरा जिला कलेक्टर बिजल शाह, सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी समेत के नेताओं की उपस्थिति रही। इस मौके पर अलग अलग विभाग के अधिकारियों से बैठक कर जो कैश डॉल और सहायता बाढ़ पीड़ितों को दी जा रही है, उस पर जानकारी ली गई। वडोदरा कलेक्टर कचेरी खाते वडोदरा जिल्लाમાં પૂરને લઈને પૂરની રાહતની કામગીરી માટે જે કોઈ અધિકારીઓની નિમણૂક કરવામાં આવી છે એ તમામ અધિકારીઓ સાથે સાથે વડોદરાના ચૂંટાયેલા સૌ પ્રતિનિધિઓ આ બધા જ લોકો જોડે ખાસ કરીને સ્વચ્છતા, સ્વાસ્થ્ય, કેશડોલ્સ અને ઘર વખરી માટે જે સહાય આપવાની છે તેની રિવ્યૂ બેઠક આજે એક રાખવામાં આવી હતી। પહેલા ફેઝની અંદર રિવ્યૂ બેઠકની અંદર ઘર વખરી અને કેશડોલ્સ માટેની જે બેઠક હતી તેમાં ખાસ કરીને વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં આવતા 64,360 પરિવારોને કેશડોલ્સ આપવામાં આવ્યા છે। વડોદરા ગ્રામ્યમાં 20,610 પરિવાર સુધી કેશડોલ્સ આપવામાં આવ્યા છે, જે આજે સવારે 8 વાગ્યા સુધીનો આંકડો છે। કુલ મળીને વડોદરા જિલ્લાની અંદર 84,970 પરિવારોને કેશડોલ્સ આપી લેવામાં આવ્યા છે। એ જ રીતે ઘરવખરી સહાય જે હોય છે તે 5,835 પરિવાર વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં, વડોદરા ગ્રામ્યમાં 3,933 પરિવાર સુધી ઘરવખરી આપી લેવામાં આવી છે। એટલે કુલ મળીને 9,768 એટલે કે 40,000 પ્રભાવિત લોકો સુધી ઘરવખરી બી આપી લેવામાં આવી છે। આની ખાસ કરીને ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ અને બીજા અધિકારીઓને બી જણાવવામાં આવ્યું છે કે કોઈ બી પ્રકારની લોકોની માંગણી હોય કે રહી ગયું હોય, કોઈ બી વ્યવસ્થાઓ કોઈ બી જગ્યા પરથી ફરિયાદ આવે તો તે તાત્કાલિક કલેક્ટર કચેરીની અંદર જે નોડલ ઓફિસર છે એને જાણકારી આપવામાં આવે અને તાત્કાલિક એમના દ્વારા ટીમ મોકલીને ઘરવખરી અને કેશડોલ્સની રકમ આપવામાં આવશે એ પ્રકારની વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી છે। એ માટેની સંપૂર્ણ ટીમ તૈયાર છે। જ્યાં જ્યાંથી ફરિયાદ આવે છે ત્યાં તાત્કાલિક ટીમ મોકલવામાં આવે છે અને એનો નિકાલ ઝડપથી લાવવામાં આવશે। કોઈ બી જગ્યા પર આ પ્રકારે ધ્યાનમાં તમને બી આવે તો ભલે ન્યૂઝમાં તમે ચલાવી શકો કે ના ચલાવી શકો, પરંતુ અમને જરૂરથી જાણ કરજો, મેસેજથી અમે તાત્કાલિક કરી લઈશું। સર યોગેશભાઈએ કીધું છે કે બધા ધારાસભ્યોને પણ માગણી કે વડોદરાનું સ્પેશિયલ પેકેજ આપવામાં આવે। આજે અત્યારે રૂટીન સહાય આપી રહ્યા છે તો બધું બરાબર, કંઈ છે આવી વ્યવસ્થા સ્પેશિયલ પેકેજ? કોઈ બી દિવસ આ પ્રકારના પેકેજ કે આ પ્રકારની સહાય માટે સર્વે થાય, સર્વેના આધારે રિપોર્ટ જાય, રિપોર્ટના આધારે કેબિનેટ મુખ્યમંત્રીશ્રી નક્કી કરતા હોય છે। હજી સર્વેની કામગીરીનું જ આજે રિવ્યૂ કરવામાં આવેલો હતો। એના માટે હજી વધુ કેટલા અધિકારીની જરૂર છે ઝડપથી સર્વે કરવા માટે, એના માટે આવેલો હતો। હજી જેટલા અધિકારી માંગ્યા છે એના માટે અમે લોકો બીજી 100 જણની ટીમ
માત્ર સર્વે માટે અલગથી મોકલીએ છીએ. અચ્છા હર્ષભાઈ, આ જે પ્રકારની પૂરની પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન થઈ, લોકોને ઘરવખરી માટે 2500 રૂપિયાની સહાય આપવામાં આવે છે, પરંતુ લોકોમાં રોષ છે કે અમે જે નાના વ્યક્તિઓ છે તેઓ પાસે વીમો નથી, તો એ લોકો માટે 2500 રૂપિયા યોગ્ય છે? તમામ લોકોમાં આ સવાલ છે. જી, આ દેશમાં કોઈ બી રાજ્યની અંદર આ યોજના ઘર વખરી હોય, કેશડોલ્સ હોય, એ નિયમ પ્રમાણે આપવામાં આવતું હોય છે, પરંતુ એના પછી સર્વે ચાલે છે. સર્વેની અંદર આ બધા જ લોકોની જે નુકસાની છે એનો એક રિપોર્ટ બનશે અને એના ઉપરથી સરકાર નક્કી કરતી હોય છે. કોઈ બી વસ્તુ આપ બી સમજી શકો છો કે જ્યારે આટલી મોટી સંખ્યામાં આખા રાજ્યની અંદર અનેક જગ્યા પર આટલો ભારે વરસાદના કારણે ઘણી બધી જગ્યા પર જે તકલીફ પડી, એનું સર્વે થયા વગર કોઈ બી ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન ના થઈ શકે એ આપણે બધા જ લોકો સમજીએ છીએ. અને એ બાબતની બી ચર્ચા આજે સૌ સંગઠનો જોડે બહુ ડિટેલ્ડ ચર્ચા આ બાબતની થઈ છે. જાય છે. ભાજપના લોકોને જોઈને લોકોમાં ક્યાંક નારાજગી છે, લોકો ક્યાંક ગેરસમજો ઊભી થાય છે. કીટ લેવાનો પણ લોકો ઇનકાર કરે છે, એવું કે છે ગો બેક. લોકોને તકલીફ વેઠવી પડી. આ અતિ ભારે વરસાદના કારણે વડોદરામાં ખૂબ ગંભીર પરિસ્થિતિ ઊભી. આ એ જ લોકો છે જેમને તકલીફોનો સામનો કરવો પડે. અને કોઈ વ્યક્તિ જેની ઉપર લાગણી હોય, જેની ઉપર શ્રદ્ધા હોય, જેની ઉપર વિશ્વાસ હોય, એની ઉપર જ ગુસ્સો ઠાલવી શકે સાહેબ. એ એની ફરિયાદ એને જ કહી શકે. આ કોઈ બી વિષય, મેં પહેલા દિવસથી આપ સૌ લોકો સાક્ષી છે, હું પોતે બી જતો હતો. કોઈ વ્યક્તિ એની તકલીફ ઠાલવે, એને ગુસ્સો કે આક્રોશ, તમે માત્ર એને નેગેટિવ વેમાં આક્રોશ ના ગણી શકો. એ એની તકલીફ છે ને એની તકલીફ નિકાલવા માટે જ આ ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ સાથે રહેશે. બધા જ વેપારીઓ ક્યાં ભારતીય જનતા પાર્ટી સંગઠનના રૂટથી આજે આવેલા હતા, ક્યાં ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓના રૂટથી આવેલા હતા. એટલે બેવ જગ્યા બધા જ લોકોની વાત છેક સુધી પહોંચે અને એ લોકોને મદદ મળે તે માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો પ્રત્યેક કાર્યકર્તા બી અમારી પાસે અપીલ કરતા હોય છે, નાનામાં નાની ફરિયાદ બી કરતા હોય છે. અને ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ બી આ શહેરના નાનામાં નાના ઇસ્યુને લઈને અમારી સુધી આવતા હોય છે. અને આજે બી એકદમ સાચી હકીકત સૌ ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિને ભારતીય જનતા પાર્ટી પરિવાર દ્વારા મૂકવામાં આવી છે. કાર્યક્રમ આવી રહ્યો છે, પોલીસ વિભાગ દ્વારા ડીજેને લઈને કેટલાક પ્રતિબંધો મૂકવામાં આવે છે, જેને લઈને જે ગણેશ મંડળો છે તેઓનામાં વિરોધ પણ જોવા મળી રહ્યો છે. ગુજરાતની ગલી ગલી પર, દરેક મહોલ્લાઓમાં, દરેક સોસાયટીમાં ગુજરાતના ખૂણે ખૂણેથી ગણપતિ બાપ્પા મોરયા, ગણપતિ બાપ્પા મોરયાના નારા લાગી રહ્યા છે. અને આ નારા હજી વધુ બુલંદ થાય તે માટે સૌ ગણપતિ મંડળો ખૂબ ઉત્સાહપૂર્વક વડોદરાના ખૂણે ખૂણે ગણપતિજીની સ્થાપના કરો, આનંદથી ઉત્સવ બનાવો. કોઈ બી પ્રકારની તકલીફ ના પડે તે માટેની સંપૂર્ણ સૂચના આપવામાં આવી છે અને આ પ્રકારનું પાલન બી જરૂરથી થશે. આપણા રાજ્યની અંદર ગણપતિ હોય કે નવરાત્રિ હોય, લોકોએ આનંદ અને ઉત્સાહથી મનાવવાનો છે અને આનંદ અને ઉત્સાહથી આ તહેવાર મનાવવામાં આવશે, અદ્ભુત રીતે મનાવવામાં આવશે. વડોદરાની અંદર હું પોતે 2 દિવસ ગણપતિમાં આવવાનો છું, મંડળ જવાનો છું. ગણપતિ બાપ્પા મોરયાના નારા વડોદરાના ખૂણે ખૂણે બુલંદથી નારા લાગશે એ પ્રકારની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. ગણપતિજીના ગીત વાગે એમાં કેના માટે ભાઈ તકલીફ હોઈ શકે? उत्साहपूर्वक वगाड़ी सके, जेમાં कोई तकलीफ नहीं ने कोई तकलीफ नहीं पड़े. गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी से मिलने पहुंचे सफाई कर्मचारियों ने गृह मंत्री के नहीं मिलने पर भाजपा नेताओं का घेराव कर जमकर विरोध किया. गुजरात के वडोदरा में विश्वामित्री का पानी भर जाने से बाढ़ आ गई थी और उस दौरान वडोदरा के पूर्व म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर विनोद राव भी वडोदरा में दिखाई पड़े थे, जिसका हरनी बोट कांड के पीड़ितों ने विरोध किया है. दरअसल हरनी बोट कांड का कॉन्ट्रैक्ट देने में डॉक्टर विनोद राव का बड़ा हाथ था. ऐसे में उन्हें वडोदरा से दूर रखने की मांग पीड़ित अभिभावकों ने सर्किट हाउस में आयोजित वडोदरा के प्रभारी मंत्री हर्ष संघवी से की है. ગૃહ રાજ્યમંત્રીએ પહેલા દિવસથી એમને જણાવ્યું છે કે તેઓ
સરકાર તરફથી આ તમામ જે વિષય બન્યો છે એમાં ખૂબ જ સ્ટ્રોંગ સ્ટેન્ડ લીધું છે અને એમની સાથે જ છે અને આજે પણ એમણે જે અમુક એમની લાગણી જે વ્યક્ત કરી તેમાં પણ માનનીય ગૃહ રાજ્યમંત્રીશ્રીએ એમને ખૂબ જ શાંતિથી સાંભળ્યા, એમના અમુક પ્રશ્નોના ત્વરિત ઉકેલ આવે એ માટે સંબંધિત પદાધિકારીઓને સૂચના પણ આપી છે અને ફરી જ્યારે તબક્કાવાર એ જે સૂચના આપી છે એનું જે કંઈ પણ પરિણામ આવે એ માટે એમણે તમામ વાલીઓને કીધું છે કે હું ફરી એકવાર આવી અને આપને મળવાનો છું અને આપને ક્યારેય પણ કોઈ પણ પ્રકારની રજૂઆત કરવી હોય તો એમણે એવું ત્યાં સુધી કીધું છે કે મારા ઘરના દરવાજા પણ આપ માટે ખુલ્લા છે. તમામ વાલીઓએ માત્ર એક નહીં પરંતુ એમની સમગ્ર લાગણી એમને જણાવી છે અને એના ઉપર ખૂબ જ સકારાત્મક વલણ માન્ય ગૃહ રાજ્યમંત્રીએ દાખવ્યું છે. लेकिन इस दौरान हरनी बोट कांड पीड़ित के एक अभिभावक को सर्किट हाउस में एंट्री नहीं मिलने पर अभिभावक ने रोष जताया। 2024 18 जनवरी को जो बोट कांड हुआ था और वो जो बोट कांड जिस करप्शन के आधार पे हुआ था, तो उस करप्शन में जो करप्शन करता है, जो हाईकोर्ट ने जिसको माना है कि भाई विनोद राव इसमें सीधा सीधा इन्वॉल्व है करप्शन में, तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको सस्पेंड करना चाहिए। हमने यही रजूआत करी सर को कि भाई जो इसमें अधिकारी भी जो है जो अभी रिटायर हो रहे हैं तो उनका सेलिब्रेशन किया जा रहा है रिटायरमेंट का, तो वो चीज़ भी गलत है। वो चीज़ देख के हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई हमें न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमने सर को वो भी रजूआत करी तो सर ने हमारी सारी बातें सुनी और हमें आश्वासन दिया है कि भाई जो भी इसमें आरोपी है सबके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। ये सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है या फिर आपको विश्वास मिले और क्या कहोगे? ये अभी तो उन्होंने आश्वासन दिया, पर उन्होंने एक बात ये भी कही है कि 3 दिन बाद वो वापस बड़ौदा आने वाले, तो हमारे पास जो भी मटेरियल है, जो भी एविडेंस है कॉरपोरेशन के, वो सब हम उन्हें देंगे और वो उस दिशा में हमारी जो FIR पेंडिंग है वो FIR भी फड़वाएंगे और वो जो भी कार्रवाई हो सकती है उसके ऊपर करेंगे। हमारा मेन आक्षेप तो 2 दिन से यही, आपने देखा होगा फ्राइडे को भी हम लोग कहे थे म्यूनसिपल ऑफिस में कि भाई उसको तात्कालिक से बाहर किया जाए बड़ौदा से, क्योंकि गुजरात में इसके अलावा और भी बहुत से अधिकारी है जो बड़ौदा के लिए काम कर सकते हैं। तो क्या ऐसी मजबूरी है गुजरात प्रशासन की कि उसको तुम बार बार लाते हैं? जिस तरह से इतने महीने बीत गए आपके जो इस न्याय के लिए आप इतने लड़ रहे हो और इतना विलंब हुआ, उसके बारे में क्या कहोगे? ये देखिए, विलंब का तो ऐसा है कि भाई जो न्याय प्रणाली है उसका जो समय लगेगा वो तो लगेगा ही, परंतु हमें हिंदुस्तान की न्याय प्रणाली से पूरा विश्वास है कि भले ही देर से ही पर हमें न्याय तो चौक्कस मिलेगा। जो विनोद राव है और जो भी उसके अलावा स्कूल है या कॉरपोरेशन के अधिकारी, ये कोटिया प्रोजेक्ट के जो भी आरोपी जो छूट गए, हमें पूरा न्याय तंत्र से विश्वास है कि वो सबको वापस हिरासत में लिया जाएगा और सबको सजा मिलेगी। जिन लोगों पे आक्षेप लगा है वही लोग कामगिरी करते नजर आ रहे हैं आपको, क्या कहेंगे? कॉरपोरेशन से ये कामगिरी सही है क्या? ये तो हमें ऐसा लगता है कि कॉरपोरेशन की कोई मजबूरी हो सकती है या कॉरपोरेशन को उन्होंने इतना दबाया है कि वो कॉरपोरेशन उनको कुछ कर नहीं सकती। पर मजबूरी किस तरह, जिस तरह से इतने बच्चों ने जान घुमाई, तो उस मजबूरी के सामने तो आपका बहुत कुछ आपने घुमाया है। हाँ, अब वो मजबूरी तो आप मेयर से जाके पूछिए ना कि वो क्या मजबूरी है कि आप विनोद राव को वापस लाए। क्यों आपने गृह मंत्रालय को और गुजरात सरकार को नहीं कहा कि भाई हमें विनोद राव नहीं चाहिए बड़ौदा में? वो क्या मजबूरी है वो मेयर बताएगा, वो हम कैसे बता सकते हैं? हमारे लिए तो सीधा सीधा कातिल है हमारे बच्चों का। उसने बड़ौदा की जमीन को खुद के बाप का माल समझ के उसके जो जानने वाले लोगों को दिया है। क्या वो बड़ौदा की जमीन उसके बाप का माल है? वो सरकारी संपत्ति है, गुजरात के रहवासियों की जमीन है। जो भी उसने करप्शन किया है वो सब देखते हैं, सब आप भी जानते हो, हम भी जानते हो, पूरा गुजरात जानता है। तो फिर क्या बड़ौदा कॉरपोरेशन की मजबूरी है? ये आप जाकर मेयर से सवाल कीजिए, कलेक्टर से सवाल कीजिए और कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटरों से सवाल कीजिए, तो वो आपको बता सकते हैं कि उनकी क्या मजबूरी है कि वो वापस लाए उनको। क्या गुजरात में और कोई अधिकारी नहीं है कि जो बड़ौदा को संभाल सकता है? अगर ऐसा हो तो बता दो हमें, तो हम शांत हो जाएंगे कि भाई गुजरात में कोई कैपेबल नहीं है। ये करप्शन, ये घूसखोर के अलावा गुजरात में कोई कैपेबल नहीं है, आप ऐसा जाहिर कर दो तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। जब मीटिंग खत्म कर हर्ष संघवी का काफिला सर्किट हाउस से बाहर निकल रहा था, तब अहमदाबाद कॉरपोरेशन के जैकेट पहनकर वडोदरा में सफाई करने वाले कर्मचारियों ने अपनी बात कहने की कोशिश की। हर्ष संघवी तो मौके से निकल गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह और अन्य नेता सफाई कामदारों के हत्थे चढ़ गए। उन्होंने भाजपा के नेताओं का घेराव कर उन्हें नौकरी दिए जाने की मांग की। એમનું આજે આ
નથી જોઈએ તમને. આયરે ભાજપ બોલો ને તમે. અમે કેટલા વર્ષોથી બેરોજગાર છે. હા અને આ બધાને નોકરીઓ કેવી રીતે લઈ લે છે ખબર નહીં પડતી. એક દાડો કામ કર્યું અને લઈ લે. બીજા બધા કેટલા બધા બાકી રહી ગયા છે. હજુ અમારે કામ ધંધો નહીં, બચ્ચાઓ છે. નોકરીઓ માટે તમે આવ્યા છે, નોકરી અમારે જોઈએ ને. શહેરની વાત કરીએ તો શનિવારના ધરણા પર બેઠા હતા અને પહેલા આ હલકટ લોકો જે મોટા મગરમચ્છો બેઠેલા છે મહિલાઓને સન્માનની વાત કરે છે, પરંતુ મહિલાઓને તમે એવું પૂછો કે તમને બાથરૂમ જવા દીધા છે અંદર? તમે સારા હલકટ, તમને હલકટ ના કહીએ તો તમને શું કહીએ? કામગીરી કરી છે, કામગીરીનું એમને વેતન મળ્યું નથી. મેં એમને એવી ખાતરી આપી છે કે સાંજે સ્થાયી સમિતિના અધ્યક્ષને ત્યાં આપણે જવાનું, કોર્પોરેશનમાં જવાનું, જે તમારી જૂની જે બાકી છે એ તમને રકમ મળશે અને આ રકમ મળે, કદાચ કોઈ મુશ્કેલી પડે તો ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યાલય પર આવીને રજૂઆત કરવાની તમને છૂટ છે. રકમ નથી જોઈતી અમને, શું જોઈએ? રકમ નથી જોઈતી અમને, નોકરી જોઈએ. નોકરીની માંગ એમની છે, નોકરીની માંગ એમની છે. 1200 આ બેન સદંતર ખોટું બોલે છે. 1200 લોકોને નોકરી આખા ગુજરાત. આ બેન સદંતર ખોટું બોલે છે. આજ બેન સદંતર ખોટું બોલે છે. આજ વર્ષે 1200 લોકોને આજ વર્ષે નોકરી આપી છે. વડોદરા કોર્પોરેશનમાં નોકરી આપી છે. 1200 લોકોનું લિસ્ટ તમને આપી શકીએ એમ છે. બેન લોકોને ઉશ્કેરી વિસ્તારનું વાતાવરણ ખરાબ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે, શાંતિ ડોળવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. બેનને ખબર જ નથી કે વડોદરા શહેરમાં કોરોનાના સમયગાળામાં જેણે કામ કરેલું છે એ બધા જ લોકોને, કોરોનાના સમયગાળામાં જેમણે કામ કરેલું છે એ બધા જ લોકોને બેનને બધી જ વાત કરવાની છૂટ છે. અને બેન જે કૌભાંડ હોય બજારમાં તમને રજૂ કરવાની છૂટ છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ તમારી વાતોથી દબાણમાં આવવાનું નથી. અને જેટલા લોકો કોરોનામાં હતા એ બધા જ લોકોને નોકરી મળી છે. આવનારા સમયમાં પણ એમને નોકરી મળશે. નોકરીની પ્રક્રિયા હોય, અહીંયા આગળ લોકોને ટોળા ભેગા કરવાથી નોકરી ન મળે, નોકરીની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ થશે. રાજ્ય સરકારમાંથી નોકરીના સંદર્ભમાં ખર્ચની મંજૂરી લેવાશે અને ત્યાર પછી જેટલી જરૂરિયાત છે તેટલા લોકોને નોકરી આપવામાં આવશે. પરંતુ જો એવું કહેવા માંગતા હોય કે અહીંયા અત્યારે અમે આવેલા છે, અમે અહીંયા ઉભેલા છે અને અહીંયા જ એમને નોકરી આપવામાં આવે, તે વસ્તુ શક્ય નથી. गुजरात के वडोदरा में बाढ़ पीड़ितों के घाव पर अब भारतीय जनता पार्टी के नेता अनाज किट के नाम पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ये मरहम लोगों को स्वीकार नहीं है। वडोदरा में बाढ़ के बाद स्थिति बदहाल है। ऐसे में पीड़ितों के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा अलग अलग इलाकों में राहत सामग्री के रूप में अनाज किट का वितरण किया जा रहा है। राज्य के शिक्षा मंत्री कुबेर डिंडोर, गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल और स्थानीय नगर सेवकों को साथ रखकर वाघोड़िया रोड पर साई विहार सोसाइटी इलाके में किट वितरण किया गया। आज बड़ौदा की मुलाकात में आया हूँ। मेरे एजुकेशन की हमारी जो प्राइमरी स्कूल, माध्यमिक स्कूल, कॉलेज सभी 3 दिन बंद रहे। पूर्ववत अभी चालू होने जा रही है। हमारे शिक्षा विभाग के हमारे जो अधिकारी, पदाधिकारी और हमारे कॉर्पोरेटर, विधायक सब साथ में मिलकर हमें आने वाले समय में 2 दिन में ये जो स्कूलों में जो बच्चे जो पढ़ाई करते थे उनकी जो पुस्तक है, दफ्तर सब नष्ट हो गए, ऐसा इनका सर्वे करके तो गवर्नमेंट की ओर से पाठ्य पुस्तक मुहैया करा जाए और उसकी जानकारी लेने के लिए मैं आया। समूह के जब सभी जो हमारे जो शिक्षक मित्रों ने चंदा इकट्ठा करके अभी 5000 जितने दफ्तर तैयार किए हैं वो बच्चों को हम देंगे और बाकी नोटबुक भी देंगे और आने वाले समय में जो हमारे DO DPO उनको सूची देंगे, उसके हिसाब से जो पाठ्य पुस्तक जो है वो गवर्नमेंट की ओर से फ्री में तुरंत तत्काल पहुंचाने का प्रावधान हम करने वाले हैं। ખૂબ જ સંવેદનશીલ છે. સ્પીચો એમની ગણાવી હોય એવા જગ્યાએ કીટોનું વિતરણ અને જે શૈક્ષણિક કીટ છે એમને ભણવા માટે જે પણ જરૂરિયાતની વસ્તુ છે, કાં તો એમના ઘરોની અંદર એમના પેરેન્ટ્સને તકલીફ હોય તો એના માટે બધી ભારતીય જનતા પાર્ટી અને ભારતીય જનતા પાર્ટીની આખી ટીમ ખૂબ ખડે કામ કરી રહી છે. ત્યારે આદરણીય આપણા શિક્ષણ મંત્રી પણ એમાં તાકાત ન હારે અને વડોદરા શહેરની બહાર આવ્યા છે અને આપણી જોડે જોડાયા છે. એના માટે હું આપણા શિક્ષણ મંત્રીનો આજના દિવસે આભાર વ્યક્ત કરું છું. भारतीय जनता पार्टी की ओर से अनाज की किट का वितरण कर लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी को जो डैमेज हुआ है उसे भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोगों में सख्त नाराजगी है। भारतीय जनता पार्टी और पार्टी के नेताओं को लगातार नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है।
सोमनाथ सोसाइटी के लोगों ने भी मीडिया समक्ष अपना रोष व्यक्त किया है। वो किड छोटे बच्चे को जैसे लॉलीपॉप दिखाते हैं ना, वैसे हम लोगों को लॉलीपॉप दिखा के खुश करके चले गए। बस इतना इन शब्दों में आपको समझना चाहिए कि छोटे बच्चे हम लोग नहीं। पानी 3 दिन से उतरा नहीं था, पीने का पानी का इतना, घर में भी इतना, फ्रिज, स्कूटर, पूरा फर्नीचर, इतने तक पानी था घर में। तो हम लोग 3 दिन तक ऐसे ही रहे, नहीं पीने का पानी। और मेरा तो बच्चा भी छोटा है, 6 साल 7 साल का बच्चा। सभी को तकलीफ हुई है, ऐसा नहीं सिर्फ मैं बोलती हूँ इसलिए आप लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। तो पूरी सोसाइटी का लीजिए ना, मैं अभी क्यों कहती हूँ। अब पूरी सोसाइटी में घर पर जाके पूछे तो सभी को दिक्कत हुई है, लेकिन कोई भी बोलना नहीं चाहता। मैं बस इतना ही कहूँगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। जितना भी समझना हो उतना आप समझ। सफाई होती ही नहीं, टैक्स लेते हैं ना, सफाई का टैक्स लेते हैं, वो क्या करते हैं यहाँ पे कभी सोसाइटी में झाड़ू लगाने आते हैं, जैसे आते हैं ना सिटी में, सिर्फ वो डोर टू डोर कलेक्शन आ जाती है गाड़ी, उसमें हम कचरा डालते हैं। ये सब सोसाइटी हमें रोज़ भी साफ करनी पड़ती है। और पानी निकलने के बाद सारी सोसाइटी इकट्ठी होकर ही अब सब लोग साफ करते हैं। कोई भी देखने नहीं आता कि इस सफाई में चलो हम लोग आपकी मदद। कॉरपोरेशन वाले सिर्फ टैक्स लेते हैं, सिर्फ उसका काम टैक्स लेना है, लोगों का खून चूसना है और कुछ। भारत इस साल मॉनसून की विनाशक मार झेल रहा है। भारत के कई राज्य इससे प्रभावित हुए हैं, जिसमें है त्रिपुरा, जहां पर बाढ़ से बदहाली फैल गई है। 70 साल बाद त्रिपुरा में ऐसी बाढ़ आई है जहां पर सब कुछ बर्बाद हो गया। और ये बर्बादी का मंजर देखकर आपका दिल भी दहल जाएगा। त्रिपुरा की इस बाढ़ को कवर करने पहुंचे VNM TV के मोहम्मद अली चाकी, जिन्होंने ये रिपोर्ट बनाई है। देखते हैं त्रिपुरा के क्या है हाल। बहुत सारे फैमिलीज है जो अभी घर में रहने की इच्छा भी नहीं है, लोग को खाने का कुछ भी नहीं। स्कूल नहीं जा पा रहे हम। भारत इस बार विनाशक मॉनसून की मार झेल रहा है। कई राज्य ऐसे हैं जिनकी स्थिति बाढ़ से बदहाल हो गई है। उन्हीं में से एक है त्रिपुरा, जहां पिछले 70 साल की विनाशक बाढ़ आ गई है और सब कुछ बर्बाद हो गया है। पूरा त्रिपुरा की ऐसा कुछ पीपल है, मेरे गांव की जो दशा है, मैं तो सारी त्रिपुरा में नहीं गया, लेकिन हमने जो अनुमान कर रहा हूँ कि हमारे तरह बहुत सारे फैमिलीज है जो अभी घर में रहने की इच्छा भी नहीं है। मैंने कल चरबे स्कूल में गए थे। चरबे स्कूल में जो लोग थे वो मुहरी के पास के लोग हैं। उन लोगों के घर में कुछ भी नहीं है, घर में बचा हुआ कुछ भी नहीं है, लेकिन जो खेती करता था उसके पास थोड़ा बहुत पैसा था, लेकिन उन्होंने तो कुछ भी नहीं बचा पाया, कुछ भी नहीं बचा पाया। हम हमारी संगठन से उन लोगों को थोड़ा बहुत कपड़े दिए थे, वही पहन रही है। उसके हालत तो बहुत बदतर है। त्रिपुरा में जो डैमेज हुआ है उसको रिकवरी करने में हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट्स या अदर स्टेट में जो सबको हम विनम्र आवेदन करते हैं कि त्रिपुरा की साथ रहे। जो पीपल्स है उनकी मदद करे, नहीं तो लोग को खाने का कुछ भी नहीं। खेती मेन आपका व्यवसाय है, तो अभी क्या करेंगे आप? जैसे वापस अभी आपको क्या लगता है कितने दिन बाद अभी आप वापस घर लौट पाएंगे? अब तो 1 हफ्ता हो गया है जाने के। हाँ, कितने साल हो गए वो पता नहीं लगा। सरकार ने भी अभी तक कुछ बताया नहीं है। और आप अपने घर जाने की कोशिश की है आपने? हाँ किया था, वो सफाई वगैरह कूड़ा वगैरह किया था। अच्छा, फिर भी मिट्टी भी नहीं जा रहा है। अच्छा, इतना मिट्टी पड़ा है। तो आपके हिसाब से और कितना वक्त लगेगा जाने में वापस? तो मेरे को भी नहीं पता। नहीं पता मैं है। पहली बार देखा हूँ इतना मिट्टी, अच्छा। इतना पानी। और जैसे फिर खेती वगैरह का कैसे करेंगे आप वापस लौट के? वो भी नहीं कम से पता। कम तो अभी तो साल तो लगेगा, 1 साल लग जाएगा। स्कूल नहीं जा पा रहे हम।
मिट्टी जब तक है, अच्छा, जाने का कोई रास्ता भी नहीं है, जाने का भी रास्ता नहीं है। रास्ता में इतना हमारा जितना स्कूल का बुक का सब पानी में बह गया, बाहर में बह गया। अच्छा, बुक भी आपका सबका चला गया है। कितने लोग थे घर में रहने वाले? 4 জন, আমরা 6 জন। 6 जन আমরা 6 জন পরিবার, 4 জন परिवार। अच्छा, 10 जन परिवार टोटल। 10 10 जन का पूरा घर चल गया। और घर था वो मिट्टी का था या ऐसे इसका था? मिट्टी का घर था। कितना पुराना था घर आपका? कितना वर्ष? 35 वर्ष हो गया। और आपने इससे पहले कभी ऐसा बारिश हुआ या कभी ऐसा देखा था आपने? 35 साल में इतना बारिश हुआ लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ, इस बारिश में चला गया। और फिर जब पानी आ गया था घर में तो आप लोग कहाँ? मछली तो सब निकल गया। तो ये आप देख रहे हैं कि जैसे इन्होंने हमें बताया कि ये ट्यूटर हैं पॉलिटिकल साइंस के और कई सालों से बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो ये जो था ये उनका क्लासरूम था। ये आप देख पा रहे हैं कि टूटे हुए टेबल कुर्सियाँ हैं यहाँ पे। तो अब इनको भी नहीं पता कि ये बच्चों को आगे कैसे पढ़ाएंगे। अब क्या करेंगे आप? मतलब ट्यूशन क्लास आपका पता नहीं पता आपको? कौन जगह पढ़ाऊँ, केंद्र पढ़ाऊँ, मुझे कुछ नहीं। और कितने स्टूडेंट को आप पढ़ाते हैं? 50 जो। अच्छा, तो ये जो आप देख रहे हैं इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे इनका घर था और इधर राइट हैंड साइड पे ट्यूशन क्लासेस थे। ये पूरी तरह से सब तहस नहस हो गया है। यहाँ के ज्यादातर लोगों को सरकारी सहायता भी नहीं मिली है और न ही उनके हाल चाल किसी मीडिया द्वारा दिखाए गए हैं। लेकिन हमारे चैनल के जरिए हम वहाँ की हालत देश की सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि नॉर्थ ईस्ट के इन लोगों को भी सरकारी सहायता मिल सके। तो ये हम देख रहे हैं कि एक और घर पूरी तरह से धराशायी हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा। इधर कितना परिवार रहता था ये घर में? 7 परिवार इसमें रहता था। हमारे 4 परिवार 4 लोग रहता है। अच्छा, आप 4 लोग रहता है। उम्र बताएंगे तीनों का? वर्ष? मेरा 25 का है, तो मेरे बेटी का 12 का है, उसका 30 का है। 30 का। और आपकी एक और बेटी है, उसका एज कितना है? 13 साल का है। तो ये कितना साल पुराना घर था आपका इधर? 10-12 साल का है। 10-12 साल पुराना घर है। तो अब क्या करेंगे? अब तो ये टूट गया पूरा। टूट गया तो जिधर है यहाँ और मेरा मकान बना जा भाई। अच्छा, ये पीछे ये वाला अच्छा, ये वाला भी तो टूटा हुआ है। ये किसका है? ये आपका है? हाँ, ये मेरा घर है। ये पानी बोलिए आप बोलिए, तो मैं साथ साथ शूट करूँ। क्या हुआ? हाँ, घर तो टूट गया। क्या बोला? कितना साल पुराना घर था ये? ज्यादा नहीं। 20 साल पुराना घर था ये। और कितने लोग रहते थे यहाँ घर में? फैमिली मेंबर्स 9 फैमिली मेंबर्स। तो 9 फैमिली मेंबर्स थे जो इस घर में रहते थे। और अभी हम देख रहे हैं कि कुछ नहीं बचा, सब पानी सब कुछ ले गया है। केवल ये अलमारी और यही बचा है। तो अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? अभी कहाँ पे रह रहे हैं ये लोग? अभी ऐसे इसमें देख ले सकता हूँ? तो ये 9 के 9 परिवार यहीं पे रह रहा है अभी अलग अलग? अच्छा, तो अभी ये लोग काफ़ी बड़ा परिवार है, 9 लोग हैं। तो इन लोगों ने अभी सबने थोड़ा थोड़ा अपना जुगाड़ किया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये मुझे लग रहा है इनका किचन है। तो कुछ लोग यहाँ रह रहे हैं, फिर कुछ लोग जो हैं
वो यहाँ रह रहे हैं अभी। तो अभी इन्होंने टेम्पररी सेटलमेंट है इनका यहाँ पे, लेकिन काफ़ी बड़ा परिवार है। किचु पशेना। तो ये कह रहे हैं कुछ भी बचा नहीं और सब कुछ इनका अच्छा खाना पीना भी अभी नहीं है। तो इनके पास अभी खाना पीना भी नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि इनको मदद पहुंचे। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। वडोदरा शहर करीब करीब 4 दिन बाढ़ से प्रभावित रहा और इन 4 दिनों में वडोदरा शहर के कई ऐसे इलाके हैं जो बाढ़ से ग्रसित थे। उसमें MS यूनिवर्सिटी के कई विभाग की हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। आज मैं जहाँ हूँ वडोदरा शहर का बहुत ही मशहूर MS यूनिवर्सिटी का फाइन आर्ट्स फैकल्टी, जहाँ स्कल्पचर डिपार्टमेंट और फोटोग्राफी डिपार्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा पानी भर गया था और करीब हम बात करें, एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं बता सकते, मगर लाखों रुपए का नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। हमारे साथ अभी हम जिनसे बात करेंगे वो आज के दिन के लिए यानी कि इंचार्ज डीन सर हैं। सर, क्या स्थिति थी उस वक्त और कितना नुकसान हुआ है, क्या क्या चीज़ें डैमेज हुई और बर्बाद हो गई? ये जो पानी आया इस बार बहुत सारा ये इसमें आया है और स्कल्पचर डिपार्टमेंट का जो बेसमेंट है उसमें पूरा पानी भर गया है, जो कि एक बहुत बड़ा एरिया है।
जितना बड़ा ऊपर का स्टूडियो है उतना ही बड़ा नीचे का बेसमेंट है। जो बच्चों के टूल्स थे, मशीन्स थे और जो उन्होंने काम किए थे अलग अलग मीडियम्स में, वुड में, मिट्टी में, सीमेंट में, पीओपी में, ये सारे उनके काम जो पहले किए थे, अभी जो कर रहे थे, जो अधूरे थे, वो सारे डैमेज हो गए। मतलब उसकी भरपाई अभी कर नहीं सकते, मतलब वो सारा अभी बह गया है पानी में। जो मशीनरी की बात कर रहे हैं भरत भाई, ये दिखाइए यहाँ, ये सारी जो मशीनरी है वो बर्बाद हो चुकी हैं। ये नीचे देखिए, ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ये सारा जो सामान दिख रहा है, ये सारे छात्रों के लिए यहाँ स्कल्पचर डिपार्टमेंट है। ये सारे जो उनके कुछ काम हैं वो भी, और टूल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे पड़े हैं जो नीचे से अभी लेके आए हैं। बेसमेंट पूरा पानी से भरा हुआ था और वहाँ पर रखी हुई सारी चीज़ें बस इसी तरह बर्बाद हुई हैं। सर, कितना समय लगा ये पूरा बेसमेंट खाली करने में? करीब करीब 2-3 दिन लगे ना। 3 दिन में उन्होंने पानी निकाला, क्योंकि पानी इतना भरा हुआ था कि 1 या 2 मोटर से नहीं हो पाया। तो करीब करीब 7-8 बजे तक करते थे रात को, और फिर दूसरे दिन सुबह 7 बजे से फिर शुरू हो जाते थे। तो ऐसे करके उन्होंने पूरा पानी निकाला है। जी, तो ये बेसमेंट कब फिर अब सुचारू हो पाएगा कि स्टूडेंट्स उसे इस्तेमाल कर सकें? अभी तो पूरा गीला है नीचे, तो लेट इट ड्राई एक्चुअली, और उसके बाद फर्नीचर पूरा निकालना पड़ेगा, उसको सुखाना पड़ेगा। तो कम से कम 15-20 दिन तो मुझे लग रहा है कम से कम जाएगा उसमें। अभी एक फाइन आर्ट्स फैकल्टी के छात्र भी हमारे साथ जुड़े हैं, आर्यन पटेल। आर्यन, क्या डैमेज हुआ है? आपका भी कोई कुछ आर्टिकल बना हुआ डैमेज हुआ है क्या? जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो सारे टूल्स थे, अभी 2 दिन से हम लगातार मोटर लगा के नीचे से पानी खींच रहे थे। वो पानी निकालने के बाद ये कल ही हमने सब सामान नीचे जाके ये सब बाहर निकाला। अभी टूल्स भी सब ऐसे हालत में, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स की टूल्स है, तो उसमें पानी और मिट्टी, धूल वगैरह सब भर गया। अभी उसके बाद हम बाहर निकाल के इनको सुखाने के लिए रखा है। इसके बाद ही कुछ दिनों बाद पूरे सूख जाने के बाद ये पता चलेगा कि चलने की हालत में है या नहीं। इसके साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे हमारे क्ले मॉडलिंग के टूल्स थे, वुड कार्विंग के टूल्स, स्टोन कार्विंग के टूल्स, ऐसे सब टूल्स नीचे थे। उसके साथ साथ हमारे पिछले 4 साल के बैचलर्स के जो ईयर्स थे, उसमें जो स्केचेस किए हुए थे बहुत सारे लोगों के, वो स्केचेस भी वहाँ पे थे। तो वो सब स्केचेस भी अब ऑलमोस्ट मिट गए वो सब। फिर एक मेरा क्लासमेट है, उसने अभी 2 महीने में टेराकोटा के काम किए हुए थे, कुछ 15-20 काम किए हुए, और वो हायर्ड नहीं थे, इसकी वजह से पानी में वो सब 15-20 काम भी अब गायब हो गए। ऐसे यहाँ कुछ छात्र हैं जिन्होंने काम शुरू कर दिया है, उनसे भी बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो हालात खड़े हुए उसमें क्या उनका भी कोई काम खराब हुआ है क्या? क्लासरूम चल रहा है क्या? कितना खूबसूरत लग रहा है। छात्रों ने काम शुरू कर दिया है, ड्राइंग क्लास चल रहा है यहाँ पर। ये देखने का एक अलग ही मज़ा है। हालांकि मैं बहुत ही अजीबोगरीब समय पर यहाँ आई हूँ। हमने अक्सर फिल्मों में ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियोस देखे हैं कि एक व्यक्ति एक पोज में बैठा है और उसी का चित्र कोई बना रहा है। यहाँ छात्र वही चित्र बना रहे हैं। फाइन आर्ट्स फैकल्टी का ड्राइंग डिपार्टमेंट, और ये विभाग में जिस तरह छात्र आज से सुचारू हो गया है, ये विभाग पिछले कई दिनों से बहुत ही ख़राब परिस्थिति थी वडोदरा शहर की, बाढ़ग्रस्त था वडोदरा शहर, और बाढ़ से प्रभावित हुआ एमएस यूनिवर्सिटी का फाइन आर्ट्स फैकल्टी भी। वडोदरा शहर का फाइन आर्ट्स फैकल्टी और परफॉर्मिंग आर्ट्स वैसे भी पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ से बहुत बड़े बड़े कलाकार हिंदुस्तान को मिले और हमारे विश्व को भी मिले। विश्व फलक पर भी यहाँ के कई कलाकारों ने अपना शहर का नाम रोशन किया। आपका कोई काम यहाँ डिस्टर्ब हुआ ये बाढ़ जब आई? नहीं, वो बेसमेंट में ही पानी भरा था, तो वो मास्टर्स फर्स्ट ईयर का था, तो
हम बैचलर सेकंड ईयर में अभी। जी तो जी ये मेन स्टूडियो में होता है हाँ। बैचलर्स का। बैचलर्स तो बच गए। हाँ बैचलर्स। आप क्या कहना चाहोगे ये जो अभी फर्स्ट ईयर का ही हूँ। अच्छा आप मास्टर हाँ, तो ओके। मेरा 2 काम बर्ड बनाया था, वो क्ले का था, वो डूब गया। देन बाकी टूल्स वगैरह जो हाँ। भी था वो खराब हो गया। कहाँ से हो आप? मैं आसाम से हूँ। आसाम से आसाम, हो हाँ। आप। चलिए कोई नहीं, जो काम खराब हुआ है उससे अब और बेहतर बनाना कुछ, हाँ, वो तो अभी ट्राई करेंगे। है ना? हाँ। जी। वडोदरा शहर की ऐसी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वडोदरा शहर बाढ़ग्रस्त करीब 4 दिन तक रहा। कई इलाके अब पानी से बाहर हो गए हैं, मगर अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां थोड़ा-थोड़ा पानी अभी भी भरा हुआ है, उसे निकालने की मशक्कत चल रही है। हम एमएस यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट्स फैकल्टी का दौरा करने आए थे कि यहाँ क्या स्थिति है और यहाँ किस तरह क्या डैमेज हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। फाइन आर्ट्स फैकल्टी में 2 विभाग में ज़्यादा नुकसान हुआ है, एक फोटोग्राफी और दूसरा स्कल्पचर विभाग। फाइन आर्ट्स फैकल्टी का ये फोटोग्राफी विभाग है। पूरा कूड़ा बन गया सारा सामान। 150 बुक्स थी, कैटलॉग्स थे, वो भी किसी ने हमें गिफ्ट दिया था, वो भी पानी में भीग गया है। पुराने कैमरास है जो कि बच गया है बट थोड़ा मॉइस्ट हो गया है, वो भी अभी हमने खुला रखा है। और ये ऐसे कलेक्शन है मैं कैमरेस के जो आज के दिन में जो डिजिटलाइजेशन हो गया है, तो ये मैनुअल कैमरास थे, और मामिया और पेंटेक्स और बहुत नामी कैमरास जो आजकल ये देखने को भी नहीं मिलता है। ये एक्चुअली म्यूजियम पीसेस हो गए हैं। ये किताबें सारी पूरी भीग गई हैं, अब सुखाने की कोशिश की जा रही कुछ है। अभी बच्चों को दिया है, वो लोग थोड़ा सुखा रहे हैं उसको। बहुत ज़्यादा सामान यहाँ पर डैमेज हुआ है, बर्बाद हुआ है। कुछ चीज़ें तो बिल्कुल फेंक देने की कगार पर ही आ गई, जो बाहर निकाल दी गई हैं। फोटोग्राफी विभाग है तो यहाँ डार्क रूम भी होता ही है, जो डैमेज हुआ है। लकड़ी के कबर्ड पूरा गए अभी, टोटल खत्म हाँ, हो गया। वही। अब ये डार्क रूम नया ही बनेगा। नया बनाना पड़ेगा। पुरानी यादें ताज़ा हो गई मेरी तो। एनलार्जर पे जब मैं काम करती थी डार्क रूम में, ये एनलार्जर है, ये सारे फोटोग्राफी के एनलार्जर जी ऊपर में था, प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ था, तो ये ये बच सारे गया, बच ये गए। बच गया। हालांकि इसके यूज नहीं है, बट अभी बच्चों को हमें सिखाने के तौर एक समय में इसी पे काम होता था। इसमें ही काम होता था। ये ऐसी अपडेट्स और खबरों के लिए बस बने रहे VNM टीवी के साथ। गुजरात के वडोदरा में फिर एक बार हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं की भावना आहत हो ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जिस पर सवाल उठना लाजमी है। हिंदू धर्म में कई धार्मिक त्योहारों को श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। उन्हीं में से एक त्योहार है दशामा का, जिसमें 10-10 दिनों तक उपवास कर महिलाएं और पुरुष मां दशामा की आराधना करते हैं। 10 दिनों तक दशामा की प्रतिमा की पूजा कर उनका विसर्जन करते हैं और विसर्जन के कई दिनों के बाद अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आए तो त्योहारों के सेलिब्रेशन पर और भक्तों की धार्मिक आस्था पर ठेस लगती है। कुछ दिनों पहले वडोदरा में दशामा के विसर्जन में हुई अंधाधुंधी पूरे शहर ने देखी थी, जहां मुश्किल से 2-3 छोटे-छोटे कृत्रिम तालाब बनाकर वहां विसर्जन करवाया गया और हाल ये हुआ कि प्रतिमाएं सही ढंग से विसर्जित ही नहीं हो पाई। इतना ही नहीं, जो विसर्जित हुई भी वो भी अब ऐसी हालत में है कि उन्हें दफनाने की जरूरत पड़ रही है। वडोदरा के वार्ड नंबर 4 के कार्यालय के बाहर गड्ढा खोदकर इन प्रतिमाओं को गाड़ने की कोशिश हो रही थी। उसी वक्त यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पवन गुप्ता वहां पहुंच गए और प्रतिमाओं की दुर्दशा पर सवाल उठाए। તમારું નામ શું છે? ના ઉભા રહો નહીં, નામ શું છે તમારું? હે? રાકેશ સોલંકી. કયા વોર્ડમાંથી છો? વોર્ડ 4. આ શું કરતા હતા તમે? મૂર્તિ કઈ લઈ જતા હતા? વિસર્જન કરાવે. વિસર્જન કે દફનાવતા હતા તઈ? હું તો ત્યાં આવ્યો ત્યારે આ ચાલતું હતું, વિસર્જન માટે અહીંયા જ લઈને આવવાના હતા. અને આ કોના આદેશ હતા આ મૂર્તિ માટેના? તો અમે સાહેબના એટલે કયો સાહેબ કયો? કમિશનરે આદેશ આપ્યો? અરે નિલેશભાઈ સાહેબનું અહીંયા કે વિસર્જન કરાવવાનું છે. કયા વિસર્જન કરાવવાનું છે?
આ ભગવાન ને અહીંયાથી તઈ તઈથી અહીંથી તઈ રમકડા છે ભગવાન ભગવાન રમકડા છે ત્યાં ગણપતિનું નથી કરવાનું ત્યાં ગણપતિનું કરવાનું એટલે દશામાને અહીંથી તઈ લાવવાના પછી ગણપતિને કઈ લઈ જશો ગણપતિને કઈ લઈ જશો ત્યાં તો કૃત્રિમ તળાવ છે ત્યાંના તો બનાયા તો માતાજી કા સ્વિમિંગ પુલમાં હતા કે કૃત્રિમ તળાવમાં હતા इन प्रतिमाओं के नदी तालाब में विसर्जन के बजाय उन्हें जमीन में गाड़ने पर कई तरह के सवाल उठे। सामाजिक कार्यकर्ता स्वेजल व्यास और यूथ कांग्रेस अध्यक्ष पवन गुप्ता ने इस पर सरकार और वडोदरा महानगर पालिका को खूब खरी खोटी सुनाई है। વડોદરા શહેરના સૌ હિન્દુ ધર્મના તમામ સનાતન ધર્મના હિન્દુઓને એક વિનંતી છે, જે તમે કોર્પોરેશનને વોટ આપ્યા છે, આપણા હિન્દુ સરકારના હિન્દુ મોદી કરીને આપણે વોટ આપીએ છીએ, એ લોકોના કઈ રીતના ધંધા છે તમે જુઓ. અત્યારે રાતના 3 વાગ્યા છે. વડોદરામાં હરણી વિસ્તારમાં જ્યાં કૃત્રિમ તળાવ બનાવ્યું હતું દશામા માતાજીના વિસર્જન માટે, એ માતાજીની મૂર્તિઓ ત્યાંથી લઈને વોર્ડ નંબર 4ના પાછળની ભાગ સંગમ પાસે વોર્ડ નંબર 4ના કોમન પ્લોટની અંદર ખાડો ખોદીને દફનાવતા હતા. આપણા માતાજી મુસ્લિમ થઈ ગયા છે, એ લોકો દફનાવે છે. એ દફનાવનાર પણ આ જ કોર્પોરેશન. કોઈ પકડ્યું તો મારા ભાઈ પવને પકડ્યું રાત્રે. અને આ જો પવન ના હોત તો આ સક્સેસ થાત. અને આવું કઈ સુધી થાય? આ કઈ સુધી આપણે આવું બધું સહન કરવાનું? અમે પહેલા પણ કીધું કે અમે ગણપતિ બાપ્પા તમારા ત્યાં આપવા નથી માંગતા. અમને ખબર છે કે વિસર્જન તો એકવાર કૃત્રિમ તળાવમાં થઈ જાય છે, પછી ભગવાનને બીજે દિવસે ભૂલી જવાય છે કે ભગવાન કયા વિસર્જન કર્યા, ભગવાનની શું હાલત છે. આવી રીતે કચરાના ઢગલા બનાવીને અહીંથી તઈ આ તો પવને ના પકડ્યા હોત તો માતાજીને દફનાઈ દીધા હોત. આજે માતાજી માટે એટલું લડ્યા, એટલું કર્યું પવનને ને ત્યાંના સંગમ વિસ્તારના તમામ રહીશો યુવાનોએ, તારે ભગવાન અહીંયા સુધી પહોંચ્યા છે. અત્યારે ગોરવા દશામા મંદિરે રાત્રે 3-4 વાગે રાત્રે માતાજીને અહીંયા દશામાના મંદિરમાં વિસર્જન કરી રહ્યા. આ હિન્દુ યુવાનો ભેગા થઈને કે ભાઈ ધર્મ માટે બોલવું પડશે, લડવું પડશે. પણ આ એવું લાગે છે રાત્રે પણ પેલા બોટમાં આવું કર્યું, પેલામાં આવું કર્યું, ફેલિયર કર્યું, આખું વડોદરા ડૂબાડ્યું. એ જે માતાજીએ આ તમે જુઓ, જેને આખું વડોદરા ડૂબાડ્યું, એ માતાજીને ડૂબાડવા નથી માંગતા, એ લોકો દફનાવવા માંગે છે. વોર્ડ નંબર 4 જે પૂર્વ ઝોનની કચેરી આવી છે, જે ઝોનના અંદર એ ઝોનના ડેપ્યુટી કમિશનર બેસે, આસિસ્ટન્ટ કમિશનર બેસે, ઘણા અધિકારીઓ બેસે, એ છતાં એ વોર્ડ ઓફિસની પાછળ જ્યાં આખા વોર્ડ ઓફિસનો કચરો ઠલવાતો હોય એવી જગ્યા ઉપર અડધી રાતે ખાડો ખોદીને માતાજીને ત્યાં નાખવાનું કામ કરતા હતા. આ સરકાર ચોર સરકાર થઈ ગઈ છે. કેમ કે હર્ષ સંઘવી પબ્લિક મારે ના એના બીકે રાતે અંધારામાં આવે. વડોદરા શહેરના કમિશનર લોકો ગાળો ના આપે એટલે અંધારામાં નીકળે. અને હદ તો એ થઈ ગઈ કે આપણા ધર્મ અને આસ્થાના પર્વ દશામાને જે લોકોએ પાછલા દિવસોમાં રઝળતા મૂક્યા હતા, એના પછી સદબુદ્ધિ આપી કે નહીં આપી તો એ જ જાણે. પણ આજે ફરી અડધી રાતે ચોરોની જેમ માતાજીને ખાડો કરીને અને એમાં નાખવાનું કૃત્ય કરી રહ્યા હતા. આ તો મને એવું લાગે છે કે ગણપતિ બાપ્પાએ મને એ સ્થળ પર અચાનક મોકલી આપ્યો. કારણ કે જે વ્યથા અને જે પરિસ્થિતિ દશામાની થઈ, બાપ્પા નથી ચાહતા કે એમની થાય. તો એ એમના પોતાના આ પરિસ્થિતિનો અનુભવ ના કરવા પડે એના માટે અમને જાગૃત કરીને મોકલ્યો કે મારી માને બચાવો અને મારા તહેવાર આવી રહ્યા છે, મારા માટે પણ કંઈક કરો, એવી અમને સદબુદ્ધિ આપીને સ્થળે મોકલ્યો. અને આ કોર્પોરેશન અને આ અધિકારીઓ જે હિન્દુ કઈ કહીને 30 વર્ષથી ચલાવી રહ્યા છે, એ કેટલા સાચા હિન્દુ છે. અને જોડે જોડે હિન્દુ લખીને જે સંગઠનો ચલાવે છે ને, એ ચોર સંગઠનોને બી કહેવા માંગુ છું કે ફક્ત ભાજપની રેલીઓમાં જવા માટે હિન્દુ સંગઠન ના લખાવો. હિન્દુ સંગઠનનું સત્ય કામ આ તહેવારોને હાચવવાનું બચાવવાનું હોય છે, ના કે ભાજપની પાછળ રેલીઓ લઈને ફરવાનું. આ તમામ નકલી હિન્દુઓ જાગીને અને હકીકતમાં હિન્દુ ધર્મને બચાવવા માટે જાગૃત થાય, એ જ અમારી આ અપીલ છે. અને આવનાર દિવસોમાં ગણપતિ આવે છે અને આ પરિસ્થિતિ કાયમ રહી તો બધા જ વોર્ડ ઓફિસોમાં અને બધા જ ઝોનોમાં ટપલી દાવ મંડળના છોકરાઓ કરે તો નવાઈ નહીં. વડોદરા શહેરના દરેક મંડળોએ વિચારવું પડશે કે આવી રીતે નહીં ચાલે. અને આની સામે તમામ લોકોનો સખત વિરોધ છે કે આવા રાતના ટાઈમ પર આ કોર્પોરેશન જે કૌભાંડ કરે છે બંધ કરી દે. કમિશનરને કહે છે, જે કોઈ આના લાગતા ઓળખતા હોય, મેયર, બીયર, ચેરમેન, બેરમેન, આ બધાને કહીએ છે આ વસ્તુ બંધ થવી જોઈએ. यहाँ एक सवाल ये उठता है कि धर्म और त्योहारों को मनाने की होड़ में
हम कहीं भगवान के साथ अन्याय तो नहीं कर रहे हैं। गणेश उत्सव हो या कोई भी उत्सव, धर्म और आस्था का विषय है, लेकिन अब उस आस्था को इतना बड़ा स्वरूप दे दिया गया है कि हजारों की संख्या में गणेश प्रतिमाएं विराजमान होने लगी है। एक ही गणेश पंडाल में एक से ज्यादा गणेश प्रतिमाएं आपने जरूर देखी होगी। हर घर गणेश प्रतिमाएं स्थापित होने लगी है। क्या इतनी सारी गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की जरूरत है? क्या हम हमारी सोसाइटी में या आसपास रखी गई गणेश प्रतिमा की 10 दिन तक पूजा नहीं कर सकते? क्या हम हमारे घर में रखे हुए गणेश जी की ही 10 दिनों तक उसी श्रद्धा के साथ पूजा नहीं कर सकते जिनके विसर्जन की जरूरत ही ना पड़े? और अगर स्थापना करनी ही है तो इको फ्रेंडली मिट्टी की गणेश प्रतिमा स्थापित कर क्या घर में ही विसर्जन नहीं किया जा सकता? अगर इन सवालों के जवाब आप हाँ में दे सकते हैं तो शायद ऐसी दिल दहलाने वाली और दिल दुखाने वाली तस्वीरें शायद कम हो सकती है। गुजरात के वडोदरा के मध्य से गुजरती विश्वामित्री नदी के किनारे अब भी कुछ लोग जान को खतरे में डालकर रह रहे हैं। वडोदरा में विश्वामित्री नदी के किनारे यवतेश्वर घाट है। यवतेश्वर महादेव मंदिर के पीछे विश्वामित्री नदी से सटे हुए किनारे पर ही कुछ घर हैं। उनमें से कुछ घर खाली हैं, जबकि कुछ घर में लोग रहते भी हैं। विश्वामित्री नदी का जलस्तर इस बार 40 फीट के आसपास पहुंच गया था, जिससे इन मकानों की मिट्टी धंस गई है। ये मकान नीचे से बिल्कुल खुले हो गए हैं। अगर फिर कभी विश्वामित्री नदी का जलस्तर बढ़ा तो तेज प्रवाह में ये घर पत्तों के महल के माफिक धराशाही भी हो सकते हैं। जिस तरह से वडोदरा शहर में बाढ़ की स्थिति थी, समग्र वडोदरा शहर में बाढ़ की वजह से लोगों को घरों में पानी था, जिस तरह से परेशानियों वडोदरा शहर के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था, परंतु अभी हम आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं वडोदरा शहर के काला घोड़ा से भीमनाथ ब्रिज का ये दृश्य है। वहाँ पर ये मकान आया हुआ है। आप देख रहे हो जिस तरह से ये परिस्थिति में मकान है, कहीं ना कहीं और ज़्यादा दिन पानी अगर विश्वामित्री नदी में होता तो ये मकान शायद हम नहीं देख पाते। इस तरह की परिस्थिति अभी इस मकान की देख रहे हैं। अभी हम आ चुके हैं उस स्थल पर जहां पर ये परिस्थिति निर्माण हुई है। अभी आप देख रहे हो जिस तरह के एसएसजी के जो कर्मचारी है उनके मकान के बिल्कुल बगल में ही ये मकान आया हुआ है जो विश्वामित्री तट पर है। और जो परिस्थितियां हमने अभी देखी वही परिस्थितियां अभी उस जगह पर हम पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हो जिस तरह यहाँ पर गाड़ियाँ पड़ी हुई है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है। और यहाँ पर हम नज़दीक जाकर के पूरा नज़ारा हम आपको दिखाएंगे किस तरह की परिस्थितियाँ यहाँ पर। जिस तरह वडोदरा शहर में 2 दिन से बारिश थी और बारिश की वजह से है वडोदरा शहर पूरा पानी में था, और इस स्थिति में लोगों को किस तरह के हालाकी का सामना करना पड़ा। अब हम आ चुके हैं इस जगह पर जिस जगह को हमने आपको दृश्य दिखाए थे। अब बिल्कुल इसी मकान पर हम आ चुके हैं। आप देख रहे हो जिस तरह से यहाँ पर जो आश्रम हाउस जो है, यहाँ का एक गेट आप देख रहे हो जिस तरह से वो जो गेट है, एक गेट जो है पानी में बह चुका है। और ये जो पूरा कोर्ट जो बनाया गया था वो भी पूरा नदी में जो है दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से आप देख रहे हो ये परिस्थितियाँ अभी यहाँ पर है, पूरा मकान जो है अभी यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये स्थिति जो है जिस तरह से अभी थोड़ा अगर ज़्यादा पानी यहाँ पर होता तो हम जिस जगह पर अभी खड़े हैं वो जगह भी शायद नहीं हो पाती। और आप जिस तरह से परिस्थितियाँ देख रहे हो वडोदरा शहर की, ये भीमनाथ और काला घोड़ा के बीच का ये मकान है, बिल्कुल सयाजी होटल के पीछे का ये मकान है। और आप पूरी स्थिति यहाँ की देख रहे हो कि किस तरह से पूरा मकान जो है हम देख पा रहे हैं। वडोदरा में विश्वामित्री नदी के किनारे सालों से कई लोग बसते हैं। उन्हें सरकार से सुरक्षा की आस है और वो कॉर्पोरेशन से प्रोटेक्शन की मांग कर रहे हैं। बड़ोड़ा में हम लोग डॉक्टर क्वार्टर्स और विश्वामित्री के घाट पे हम लोग रह रहे और काफ़ी सालों से रह रहे हम लोग। और यहाँ जब 30 फुट पानी आया तब हमने यहाँ से निकल गए थे। फिर उसके बाद 3 दिन के बाद हम आए, घर में 2-2.5 फुट पानी था। और कॉर्पोरेशन ने रात को आके ही बता दिया था कि भाई आप लोग यहाँ से सेफ जगह पर निकल जाओ, तो पानी बढ़ रहा है, इसलिए हम लोग निकल गए थे। अभी जो ये घटना बनी उसके बाद यहाँ के काउंसिलर है जागृतिबेन काका भी आके गए, चैतन्य भाई देसाई MLA वो भी खुद आके गए और उन्होंने अच्छी तरह से हमसे बिहेव किया और बोला है कि
जो भी होगा कॉरपोरेशन तरफ से सहाय मिलेगी। अब अगर दूसरी बार पानी आता है उससे पहले अगर हो जावे तो अच्छी बात है। ऐसा जिसने कॉरपोरेशन में अपील किया है कि जो खड्डा गिर गया है उसको हमको पुरान करके दे कि नेक्स्ट टाइम जब भी पानी आवे तो ऐसा परेशानी ना हो। जब हम लोग आए घर में 2-2.5 फुट तो था ही पानी, पानी निकल गया था पर कीचड़ बहुत था। तब उसको सफाई किया, हमारा फ्रिज भी बिगड़ गया था, वॉशिंग मशीन है, घर घंटी है, डबल बेड का पलंग वो तो हमने फेंक ही दिया पूरा, गद्दे थे वो भी सब दे दिए हमने। और कितनी नुकसानी आपको भुगतनी पड़ी है। और जिस तरह से हमको जानने मिला है कि धारासभ्य हो या हाँ। स्थानीय कॉर्पोरेटर, किस प्रकार के आश्वासन आपको दिए गए? हाँ, वो लोग कल आए थे मिलने मुझे, मैंने उन लोग को बताया था तो सुबह सुबह ही काउंसिलर तो आके गए थे और रात को धारासभ्य भी आके देख के गए। जिस तरह से आपने बताया कि अभी फ्रिज को नुकसान हुआ, डबल बेड को, करीबन कितना अंदाज हम लगा सकते हैं कि कितने रुपए का नुकसान आपको हुआ है? लगभग 40,000। 40,000। क्या अपेक्षा रहेगी कॉर्पोरेशन पे? इस प्रकार का आपको नुकसान हुआ तो आपको दे पाएगी, क्या कहोगे? किस प्रकार की अपील आप करोगे? नहीं, अगर ये सब तो नहीं मिलेगा तो चलेगा, पर मेन तो ये है, अगर ये रिपेयर करके देते तो बहुत अच्छा है। हाँ, 2-3 साल पहले यहाँ जो दूसरा ब्रिज बनाने वाले थे तब कॉरपोरेशन का जेसीबी आया था, नीचे तक गया भी था, वो लोग ने रास्ता भी बनाया था, पर ग्रीन बेल्ट वाले ने स्टे लाया, उसके बाद ये काम रुक गया था। पर जो खड्डे करके गए थे वो फिर कोई देखने आया नहीं। क्या आप मान रहे हो कि उस वजह से ये परिस्थिति का निर्माण हुआ है, ऐसा कुछ? हाँ, उसी वजह से हुआ, क्योंकि उसके बाद तो अभी पानी आया है। पहले इतने हम तो 55 साल से ही यहाँ रह रहे हैं, पर कभी ऐसी परेशानी आई नहीं है। और जो खड्डा करके गए वो ही गिरा है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में अफीम नीति की नई घोषणा का ऐलान सितंबर महीने में किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मंदसौर में अफीम की बड़े पैमाने पर खेती होती है। ऐसे में मंदसौर के सांसद सुधीर गुप्ता ने इस साल की अफीम नीति पर बड़ी बात कहते हुए कहा कि सितंबर महीने में अफीम नीति की घोषणा की जाएगी। सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा कि अधिकारियों से चर्चा कर अफीम लाइसेंस बढ़ाने की कवायद भी की जाएगी। दरअसल यहां अफीम की खेती से ही कई लोगों को रोजगार मिलता है। ऐसे में अफीम की खेती को बढ़ावा दिए जाने पर जोर दिया जा रहा है। अफीम पॉलिसी को लेकर जो सजेशंस थे उस पर वर्क चल रहा है और मैं 4 सितंबर को एक बार दिल्ली जाऊंगा और उस समय भारत के अधिकारियों से मैं बात करने का कोशिश करूंगा। और जो हमारी मन की घोषणाएं भी है कि अफीम के लाइसेंस और बढ़ाए जाएं, और इसमें सफलता हम ये भी मानते हैं कि अफीम के हस्क को डोडा चूरा की प्रोसेस का प्लांट मूर्त रूप ले रहा है, उसे बनने में 1 से 1.5 साल लगेगा। और इसीलिए अभी उनके पास जो स्टॉक्स है उसके बावजूद हम मानते हैं कि जो लाइसेंसिंग पद्धति है ना, जिसमें चीरा लगाने की अनुमति है, उनमें अगर कोई कमी आई हो तो उसको वापस हम मैच करवाएंगे। इस बार हमारी कोशिश रहेगी कि दोनों पद्धतियों के कारण यहाँ लगभग 1.5 लाख के आसपास किसानों को हम जोड़ने के मूड में हैं। मैं जब आया था तब 13,000 थे, अभी 1,13,000 हैं और इस बार हम 45,000 और लाने की कोशिश में हैं। कोशिश में जितनी सफलता मिलेगी, लेकिन ये जरूर है कि नंबर ऑफ लाइसेंस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। 95 से हमारा डिमांड है और वो फाइनल जो इनका ग्रीन बुक रहता है, ग्रीन बुक अभी बनना बाकी है, उस ग्रीन बुक में सारे डाटाज रहते हैं, उसको हम फाइनली देखेंगे इसी महीने सितंबर में। गौरतलब है कि मालवा के मंदसौर नीमच जिले में किसान लाइसेंस के साथ सरकार की नीति के तहत अफीम की खेती करते हैं। अफीम की ये खेती किसानों के लिए जहां एक और लाभदायक होती है, वहीं दूसरी ओर अफीम का लाइसेंस किसान के मान सम्मान का विषय भी बनता है। गुजरात में प्रधानमंत्री आवास योजना की पोल खुलती हुई एक और खबर सामने आई है, जहां आवास योजना में रहने वाले लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। गुजरात सरकार द्वारा गरीबों को आवास देने के नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत घर दिए जाते हैं, लेकिन ये घर इतने खस्ताहाल होते हैं कि यहाँ रहने वाले लोगों को सुविधा से ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसी ही शिकायत लेकर बिलगांव के निवासी वुडा कार्यालय पहुंचे, जो प्रधानमंत्री आवास योजना की अर्बन रेसिडेंसी में रहते हैं। एक ही साल में यहाँ के घरों में पानी टपक रहा है और पानी टपकने से शॉर्ट सर्किट हो रहा है, जिसकी शिकायत लेकर निवासी वुडा कार्यालय पहुंचे। प्रधानमंत्री आवास योजना FP 38 बिल અમારી સોસાયટીના
તમામ કામમાં થોડા કામ થયા છે, મોટા ભાગના કામ બાકી છે. મકાનોની અંદર પણ પાણી આવે છે, પાર્કિંગમાં બ્લોક બેસી ગયા છે, કોમન હોલમાં ટાંકી લીકેજ છે. 1 વર્ષ પૂર્ણ થવાયું છે છતાં પણ કામ થયું નથી અને બિલ્ડરને કહીએ છીએ તો થઈ જશે કરે છે. અને બિલ્ડર અત્યારે આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા છોડીને અમેરિકા ગયા છે. તો સાહેબોને અમે વારંવાર રજૂઆત કરી પણ છતાંય અમારું કામ અત્યારે બહુ જ પેન્ડિંગ છે અને લાભાર્થીને બહુ તકલીફ પડે છે. અત્યારે અમે ઉડા ઓફિસે મેઇન ઓફિસે સાહેબને રજૂઆત કરવા આવ્યા છે. અમારા જે કામ પેન્ડિંગ છે એ કામ વહેલી તકે પૂરા કરાવે એના માટે આવ્યા છે. અને સોલર પેનલનું બી કામ હજુ અમારું બાકી છે. કોર્પોરેટરને કોઈ રજૂઆત નથી. અમે વારે ઘડીએ ઉડા ઓફિસમાં જ રજૂઆત કરી છે. કેતનભાઈ પટેલ સાહેબ, પાઠક સાહેબ, મહિપાલ સાહેબ ને વારે ઘડીએ રજૂઆત કરી છે કે અમારા કામ વહેલી તકે પૂરા કરો. આજે 1 વર્ષ થવાયું છે એટલે વહેલી તકે કામ પૂરા થાય એવી અમારી માંગ છે. वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में. फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात. વેલકમ ટુ કોર્ટયાર્ડ પેલેડિયમ 3 BHK લાર્જ સાઇઝ અપાર્ટમેન્ટ્સ જ્યાં તમને મળશે એક ગ્રાન્ડ લિવિંગ રૂમ વિથ એન અમેઝિંગ વ્યૂ સાથે એક કમ્ફર્ટેબલ ડાઇનિંગ એરિયા, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ અપાર્ટમેન્ટ્સની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે વોક થ્રુ બેલ્કની. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. श्रावण महीने के आखिरी सोमवार और सोमवती अमावस के उपलक्ष्य कावड़ यात्रा समेत के धार्मिक आयोजन वडोदरा शहर जिला में किए गए। गुजरात के वडोदरा की रक्षा करते नवनाथ महादेव की कावड़ यात्रा आज श्रावण के आखिरी सोमवार को सिद्धनाथ महादेव मंदिर से आयोजित की गई। नवनाथ महादेव कावड़ यात्रा का ये 11वां साल है, जिसमें उज्जैन से आए भगीरथ महाराज भैरव ज्योत लेकर शामिल हुए। बम बम बोले के जयकारों के साथ निकली कावड़ यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। सिद्धनाथ महादेव से शुरू कर जागनाथ महादेव पर यह कावड़ यात्रा समाप्त की गई, जिसमें शिव भक्त नीरज जैन समेत के कावड़ यात्री शामिल हुए। महत्व तो इसमें कोई वर्णन नहीं है। सावन के महत्व में, सावन का महत्व तो ये है कि अगर महादेव को रिझाया जाए 12 महीना में, अगर किसी ने महादेव का पूजा नहीं किया है, अगर सावन में पूजा करे तो उसके बहुत से मनोरथ पूरा होते हैं।
और ये कांवड़ तो इसलिए निकलता है कि जब देवताओं के पास अमृत नहीं था, देवताओं के पास अमृत था, अमृत के लिए समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन में जब इसमें विष निकला था, देवता घबरा गए थे, प्रलय हो जाएगा, तो महादेव के पास जाकर आराधना किए। महादेव ने इस विष का पान किया था। विष के पान करने से नीला कलर हो गया था, नीलकंठ के नाम से जानते हैं। इसलिए महादेव को रिझाने के लिए ये कांवड़ निकाले जाते हैं। सावन का तो संपूर्ण महत्व कोई नहीं बता सकता है। पवित्र श्रावण माह का आज आखिरी सोमवार है। इस मौके पर वडोदरा के शिव मंदिरों में सुबह से ही भाविक भक्तों का तांता देखा गया। सुबह से ही भक्तों ने कतारों में लगकर भोलेनाथ के दर्शन किए। इस मौके पर शिवलिंग पर अलग अलग आकर्षक श्रृंगार भी किया गया, जो भक्तों में आकर्षण का केंद्र बना। भक्तों ने शिवलिंग पर जलाभिषेक और दूध अभिषेक करते हुए मंगल कामना की। હિન્દુ ધર્મનો સૌથી પવિત્રમાં પવિત્ર શ્રાવણ માસ ચાલી રહ્યો છે। આ શ્રાવણ માસની અંદર આપણા હિન્દુઓના મોટા મોટા ધાર્મિક તહેવારો આવે છે। આજે શ્રાવણ માસમાં છેલ્લો દિવસ સોમવતી અમાવસ્યા છે। આજના દિવસે ભગવાન મહાદેવજીને પૂજન અર્ચન અભિષેક કરવાથી અનંત ઘણું પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે। આ શ્રાવણ માસની અંદર સોમવતી અમાવસ્યા અતિ ઉત્તમ છે અને આજે ખાસ કરીને મહાદેવજીનું સાથે સાથે પિતૃઓનું પણ તર્પણ, પિતૃઓનું પણ પૂજન માટે યોગ્ય મોટો દિવસ છે। આજના દિવસે તમે જેટલે ભગવાન મહાદેવનો અભિષેક કરો, ઓમ નમઃ શિવાય જાપ કરો, ભગવાન મહાદેવનું પૂજન કરો, અર્ચન કરો, અનંત ઘણું પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે। આજની અમાવસ્યા ઉત્તમ અમાવસ્યા છે। આજના દિવસે ભગવાન શિવજીનું યજન કરવાથી उत्तम फायदो થાય છે। वडोदरा जिला के प्रसिद्ध तीर्थधाम चांदोद के करनाली में कुबेर भंडारी महादेव के दर्शन के लिए सोमवती अमावस पर पूरे भारत से शिव भक्त उमड़ पड़े। श्रावण महीने की आज पूर्णाहुति हो रही है। इस मौके पर शिव भक्तों ने जप तप भक्ति आराधना से महादेव जी की आराधना करते हुए मंगल कामना की। आज रोज श्रावण महीना छेल्लो दिवस એટલે કે શ્રાવણ મહિનાની અમાસ ના રોજ અમે પગપાળા સંઘ છેલ્લા 15 વર્ષથી ચાલતા આવીએ છીએ। અમે રોજ સંખેડાથી 14ના દિવસે પગપાળા સંઘ નીકળે છે સંખેડાથી અને અમાસના દિવસ સવારે અમે કુબેર ભંડારી દર્શને આવીએ છીએ। કુબેર ભંડારી દર્શનમાં 15 વર્ષથી અમે અનુભવ માને છે કે પ્રશાસનની સુવિધા ઘણી સારી છે। आज श्रावण मास का अंतिम सोमवार अमावस्या का दिन पूरे जोर शोर से पूरे महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, पूरे गुजरात से लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण कुबेर दादा के दर्शन के लिए आए हुए हैं। जितने भी श्रद्धालुगण आए हैं वो शांतिपूर्वक दर्शन भी कर रहे हैं, साथ में कुबेर दादा का जयकारा भी लगा रहे हैं। आप जितने भी आने वाले श्रद्धालु हैं उन सब से निवेदन है कि नर्मदा मैया में दर्शन करते समय या स्नान करते समय धीरज पूर्वक, शांति पूर्वक आप लोग, क्योंकि नर्मदा मैया में जल का स्तर बढ़ा हुआ है, शांति पूर्वक आप लोग दर्शन करें और भोजन प्रसाद ग्रहण करके कुबेर दादा का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। श्रावण महीने के आखिरी सोमवार और सोमवती अमावस्या के मौके पर गुजरात के तीर्थ धाम श्री सोमनाथ महादेव के चरणों में हजारों भक्तों का तांता लगा। देवाधिदेव सोमनाथ महादेव के सानिध्य में श्रावण महीने के अंतिम सोमवार और अमावस्या के मौके पर सोमनाथ महादेव के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में भक्तों का हुजूम सोमनाथ तीर्थ पर उमड़ पड़ा। हजारों की संख्या में भाविक भक्तों ने सोमनाथ दादा के दर्शन कर धन्यता का अनुभव किया। शिवजी की आराधना का शिवोत्सव जैसे श्रावण महीने में रोजाना ही यहाँ बड़ी संख्या में भक्त पहुँचते हैं, लेकिन सोमवार को ये संख्या कई गुना बढ़ जाती है। भक्त सोमनाथ महादेव पर ध्वजारोहण कर पूजा विधि भी करते हैं। गुजरात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी अपने परिवार के साथ सोमनाथ महादेव के दर्शन पर पहुंचे और सोमनाथ महादेव के दर्शन कर धन्यता का अनुभव किया। इस मौके पर हर हर महादेव जय सोमनाथ के जयकारों से समूचा माहौल गूंज उठा। छेल्लो सोमवार खूब पवित्र दिवस है। आज अमारा परिवार तरफथी सोमनाथ महादेव ने ધજા ચડાવવામાં આવી છે અને પૂજા પણ કરવામાં આવી। ખૂબ ધન્યતા અનુભવું છું। ભગવાન સોમનાથ મહાદેવનો પ્રભાવ આપણે સૌ અનુભવીએ છીએ। આજે ગુજરાત સુરક્ષિત હોય, દેશ સુરક્ષિત હોય તો એના કારણમાં ભગવાન સોમનાથ અલગ અલગ જગ્યાએ ભગવાન મહાદેવના તીર્થસ્થાનો દ્વારકાધીશથી માંડી અને કામાખ્યા માતા, અંબા માતા, આવા અનેક સ્થળો કે જેના પ્રભાવને કારણે
આજે દેશ એક છે, સુરક્ષિત છે. ભગવાનને પ્રાર્થના કરું કે આવનારા દિવસોમાં ભારત એક મજબૂત રાષ્ટ્ર તરીકે દુનિયામાં ઉભરે અને ફરીથી ભારતના ધજા પતાકા સમગ્ર દુનિયામાં લહેરાય એવી આજે ભગવાનને પ્રાર્થના કરી છે. गुजरात के वडोदरा जिला के डभोई में एक कार हादसे का शिकार बनी, जिसमें महिला श्रद्धालुओं के घायल होने की खबर है. गुजरात के वडोदरा जिला के डभोई में कुबेर भंडारी महादेव मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है. यह श्रद्धालु वाघोड़िया तालुका के खांबा गांव से दर्शन के लिए करनाली जा रहे थे. उस वक्त डभोई की तरसाना चौकड़ी निकट इको और कार आपस में टकरा गई, जिसमें इको गाड़ी पलट जाने से गाड़ी में सवार महिला श्रद्धालुओं को चोट पहुंची है. 8 महिला श्रद्धालुओं को घायल होने पर डभोई के निजी अस्पताल में इलाज दिया जा रहा है. गुजरात के वडोदरा में बाढ़ का असर जेतलपुर इलाके में इस कदर हुआ है कि 5-6 दिन बीत जाने के बाद भी यहां से बेसमेंट से पानी निकला जा रहा है. वडोदरा का जेतलपुर रोड अलकापुरी से सटा हुआ पॉश इलाका माना जाता है और यहाँ वडोदरा की बड़ी बड़ी हॉस्पिटल भी है. यहाँ कई कॉम्प्लेक्स हैं, कई फ्रेंचाइजी है और कई बड़े बड़े शोरूम भी हैं. लेकिन विश्वामित्री नदी ने जब अपना दायरा छोड़ा तो भीमनाथ ब्रिज नीचे से बहकर विश्वामित्री नदी पूरे जेतलपुर में भर गई. जेतलपुर में करीबन सभी परिसर में बेसमेंट है और वहां कई फीट पानी भर गया. जेतलपुर रोड पर एमरोल्ड 1 कॉम्प्लेक्स है. यहाँ भी पिछले कई दिनों से बेसमेंट में भरा हुआ पानी निकालने की कवायद की जा रही है, जिसके लिए रोजाना हजारों रुपए खर्च भी हो रहे हैं. वडोदरा का ये आर्म लैंड कॉम्प्लेक्स है. यहाँ पर जिस तरह देख रहे हो कि परिस्थितियाँ किस तरह की है, यहाँ पर बेसमेंट में और अंडरग्राउंड जो है ये पार्किंग जोन में जो है गाड़ियाँ अभी देख रहे हो किस तरीके की परिस्थितियाँ यहाँ पर देखी जा रही है. करीबन 5 ट्रैक्टर यहाँ पर लगाए गए हैं यह पानी निकालने के लिए. आप देख रहे हो जिस तरह की जिस स्थिति है वडोदरा शहर के आर्म लैंड कॉम्प्लेक्स है. यहाँ पर जो गाड़ियाँ पार्क की गई थी पार्किंग जोन में, तो यहाँ आप स्थिति देख रहे हो किस तरह की स्थिति देखी जा रही है. करीबन 5 ट्रैक्टर जो है अभी यहाँ पर लगाए गए मशीनरी के साथ जो मोटर जो है वो चल रही है. अभी करीबन 3 दिन हो चुके हैं, फिर भी यहाँ पर पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि जिस तरह से वडोदरा शहर में बारिश थी, बारिश की वजह से पूरे वडोदरा शहर में बाढ़ जैसी स्थिति थी. और यहाँ पर जो है आर्म लैंड कॉम्प्लेक्स में जिस तरह से अभी देख रहे हो ये दृश्य अलकापुरी इस जेतलपुर रोड के जो ये है विस्तार है, और जेतलपुर रोड में आया हुआ आर्म लैंड कॉम्प्लेक्स है. यहाँ पर जिस तरह से देखो ये 1 ट्रैक्टर 2 3 4 और 5 ट्रैक्टर यहाँ पर काम पर लगाए गए हैं. और ये जो बेसमेंट में जो पानी है वो निकालने का काम अभी कर रहे हैं. करीबन 3 दिन बीत चुके हैं, फिर भी अभी पानी कम नहीं हो रहा. आप देख रहे हो जिस तरह की परिस्थितियाँ वडोदरा शहर में है, इस परिस्थिति आप देख रहे हो. गाड़ी जो है यहाँ पर करीबन 4 या 5 गाड़ी है. बाढ़ का पानी आने के कारण हमारा बेसमेंट है वो पूरा पानी से भर गया है, और वो पानी निकालने का काम पिछले 4 दिन से शुरू है. और उसमें अभी 5 ट्रैक्टर जुड़े हुए हैं जो पानी निकालने का काम है. उसका हर घंटे का किराया 1000 से 1800 रुपये है, और प्लस उसका जो फ्यूल है वो भी एक्स्ट्रा है. और ये पिछले 7 दिन से बिजली चली गई है, और बिजली ना मिलने के कारण हमें किराए से जनरेटर मंगवा के अपना ये इलेक्ट्रिसिटी चलाना पड़ता है. हमारा जो जनरेटर था वो बाढ़ में डूब गया था, तो अभी किराए के जनरेटर से हमारा बिजली का कनेक्शन चल रहा है, और अभी भी बिजली की लाइट नहीं आई है. तो ये जो नुकसान है वो जनरेटर का किराया, और उसके अलावा उसमें जो फ्यूल जाता है वो भी हर घंटे का शायद 3 से 4 लीटर डीजल जा रहा है. ये खर्च कितना माना जा रहा है जिस तरह जनरेटर का बोले तो? जनरेटर का हर दिन का खर्च है 2500 से 3000 रुपये किराया है, और हर घंटे का 3 से 4 लीटर डीजल, मतलब 24 घंटे का कम से कम 17 से 80 लीटर डीजल जा रहा है. मतलब डेली का 8 से 9 हज़ार रुपये का डीजल
और 3,000 रुपये जनरेटर का किराया। तो 10 से 12,000 का डेली का नुकसान पिछले 7 दिन से हमारा हो रहा है। विश्वामित्री नदी की बाढ़ से पीड़ित वडोदरा वासी अब लगातार नदी के तट में किए गए अतिक्रमण हटाने की और जिन्हें नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा देने की बात कर रहे हैं। ये जैतलपुर रोड के ऊपर का एमराल्ड 1 बिल्डिंग है और विश्वामित्री नदी में जो बाढ़ आई थी आज से 5 दिन पहले, उसके कारण ये बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी पूरा भर गया है और बेसमेंट 2 फ्लोर ही है, तो दोनों बेसमेंट में पूरा पानी भर गया था और जिसका निकाल करने की प्रक्रिया अभी पिछले 4 दिन से चालू है। अंदर 5 से 6 गाड़ियाँ थी जो बाढ़ के पानी में पूरी डूब गई थी, बाकी की जो गाड़ियाँ थी वो समय रहते बाहर निकल गई थी। अभी हाल 5 ट्रैक्टर की डंकी से पानी निकालने का काम जोर शोर पे है, वो शायद आज रात को 12 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा। पिछले 4 दिन से ये पानी निकालने का काम शुरू है। बाढ़ के कारण जो पानी आया उसके कारण लोगों को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान भुगतना पड़ा है और अभी जो पानी निकालने का काम चल रहा है उसमें शायद मेरी जानकारी के अनुसार हर घंटे का 1000 से 1800 रुपये का चार्ज लिया जाता है और पिछले 4 दिन से ये काम चल रहा है और उसमें फ्यूल का भी एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो नुकसान है वो आम लोगों के लिए बहुत भारी नुकसान है। गुजरात के वडोदरा में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए आम आदमी पार्टी के नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी गोपाल इटालिया बाढ़ पीड़ित इलाकों के दौरे पर पहुंचे। गुजरात के वडोदरा में कई इलाके बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित है। उन्हीं के बीच आम आदमी पार्टी के नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी और महाराष्ट्र प्रदेश के सह प्रभारी गोपाल इटालिया पहुंचे। आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ वडोदरा अध्यक्ष अशोक ओझा, वडोदरा लोकसभा अध्यक्ष वीरेन रामी समेत के नेताओं की उपस्थिति रही। इस दौरान उन्होंने मुक्तानंद इलाके में सयाजी सोसाइटी का दौरा किया। सयाजीगंज इलाके में आने वाले महाराजा नगर, रणजीत नगर समेत के कई बाढ़ प्रभावित इलाकों का आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दौरा करते हुए उनकी स्थिति की जानकारी ली। गोपाल इटालिया ने इस मौके पर बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित हुए लोगों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की सरकार से मांग की है। વડોદરાના અલગ અલગ વિસ્તારમાં આજે અમે આખી ટીમ સાથે મુલાકાત લીધી છે। જે રીતે છેલ્લા 2-4 દિવસ સુધી પૂર આવ્યું, પાણી ભરાયેલું રહ્યું, અનેક મકાનો પડી ગયા, લોકોનો ઘરનો સામાન પલળી ગયો, ખૂબ નુકસાન થયું અને એ બધી પરિસ્થિતિને લોકોને મળીને જાણી શકીએ, સમજી શકીએ, લોકોને શું મદદ કરી શકાય તે માટે થઈ આજે અમારી ટીમના અશોકભાઈ, વિરેનભાઈ રામી, પ્રતિમાબેન, શશાંકભાઈ બધા મિત્રો સાથે મળી અને વડોદરાના અલગ અલગ એરિયાની અંદર જઈ લોકોને રૂબરૂ મળી અને એમની વેદના સાંભળી, એમની રજૂઆત સાંભળી, એમને શું તકલીફો પડી એ સાંભળ્યું, ભવિષ્યની અંદર કેવા પ્રકારના સપોર્ટની તેઓ અપેક્ષા રાખે છે એ વિશે પણ અલગ અલગ વિસ્તારના આગેવાનો સાથે ચર્ચા કરી। ખાસ કરીને જ્યારે આ વડોદરાના અલગ અલગ વિસ્તારના લોકોને હું મળ્યો તો 2-4 વાતો એમની પાસેથી ખાસ જાણવા મળી કે સરકારી તંત્ર તરફથી કોઈ પણ પ્રકારની સહાય લોકો સુધી પહોંચાડવામાં આવી નહીં। દરેક લોકોની એક જ ફરિયાદ છે કે પાણીની બોટલ સુધી પણ કોઈ વ્યવસ્થા કંઈ થઈ શકી નહીં। છોકરાઓ પણ ભૂખ્યા રહ્યા, નાના બાળકો, ઘરડા માણસો ભૂખ્યા રહ્યા અને અનેક પ્રકારની તકલીફો લોકોએ વેઠવી પડી। આ સિવાય બીજી સૌથી મોટી સમસ્યા લોકો જે કહી રહ્યા છે એ એવી છે કે વિશ્વામિત્રી નદીની અંદર જે રીતે ભ્રષ્ટાચાર કરીને દબાણ ઊભું કરવામાં આવ્યું, વિશ્વામિત્રી નદીની અંદર સાફ સફાઈ નથી વર્ષોથી કરવામાં આવી, ઝાડવા નથી કાપવામાં આવ્યા, બાવળો નથી કાપવામાં આવ્યા, એના કારણે પાણીનો ભરાવો થયો
આટલું બધું ચારે બાજુ પાણી ભર્યું હતું, બધા જે લોકો છે મહાકાલી નગર થી લઈને ઝુલતા પુલના લોકો બ્રિજની નીચે રોકાયા હતા બધા, પણ આજ સુધી એવું નહીં થયું કે બધી જગ્યાએ સોસાયટીઓમાં બાકીમાં જેટલે બી બહાર તમે જાઓ ને તો પાણી આપતું હતું, જમવાનું આવતું હતું, પણ અહીંયા કોઈ પાણીનું પૂછવા નતા આવતા. અમે તો એવું કહીએ છીએ ને કે કુદરતે આ જે હાનિ પહોંચાડી એ કુદરતે નહીં, આ માનવ સર્જિત લોકોએ જાનબૂજીને હાનિ પહોંચાડી છે. એનું કારણ છે કે વડોદરા પહેલાંથી જ પાછળ હતું અને આ બીજેપી સરકારે એના 5 વર્ષ પાછું ધકેલી દીધું છે. કેમ કે એમને વડોદરાનો વિકાસ થાય, વિકાસ તો કરતા છે જ નથી, પણ એ વિકાસ એમને ગમતો બી નથી. અને હું જાતે મ્યુનિસિપલ કમિશનરશ્રીને બપોરે મળ્યો, છતાં પણ અહીંયા આગળ કોઈ જાતની સુવિધા કે સાફ સફાઈની કોઈ સુવિધા એ લોકોએ કરી નથી. મેયરને 4 વખત ફોન કર્યો, છતાં મેયર પણ ફોન ઉપાડતા નથી. સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન છે શીતલ મિસ્ત્રી, એમને બપોરે ફોન કર્યો, છતાં પણ હજુ સુધી કોઈ સામગ્રી આ બાજુ પહોંચી નથી. गुजरात के वडोदरा के सावली की शिवम केमिकल्स पर गैस छोड़ने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं उठा रहा है. सावली के गोठड़ा गांव निकट शिवम केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से जहरीली गैस छोड़ी जाने की वजह से पोल्ट्री फार्म की मुर्गियों की बड़ी संख्या में मौत हो गई. शिवम केमिकल से जहरीले गैस के रिसाव के चलते यहां फसल को भी नुकसान हो रहा है. साथ ही लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है. छाती और आंख में जलन भी हो रही है. इससे पहले भी कंपनी में गैस रिसाव के चलते कई कामदारों ने अपनी जान गंवाई है. इस मामले गोठड़ा के ग्रामजनों द्वारा बार बार शिकायत की गई है, लेकिन ठोस कार्यवाही नहीं होने पर नुकसानी लोगों को भुगतनी पड़ रही है. लेकिन गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है कि इस पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं उठा रहा है. હવે એ લોકો રાત્રિ દરમિયાન અને દિવસ દરમિયાન એક ઝેરીલો ગેસ છોડે છે. હવે એ ઝેરીલો ગેસ એટલો ખરાબ છે જેથી આપણા સ્વાસ્થ્યને પણ બહુ નુકસાન કરે છે. એક ઉધરસ, એક શરદી, આ બધું તો નોર્મલ છે. દર બીજે ત્રીજે માણસ બીમાર પડી શકે છે. અને આપ લોકો પાછળ જે પાક દેખી શકતા છો એને ઘણું નુકસાન થાય છે અને એ બી આ લોકો જવાબદાર લેતા નથી. હવે અમારી એટલી જ અપીલ છે કે એ ઝેરીલો ગેસ આ લોકો બંધ કરે, કેમ કે દર અઠવાડિયે 1-2 વાર આ લોકો એ ટાઈપનો ગેસ છોડે છે અને એનાથી આપણા સ્વાસ્થ્યને પણ નુકસાન થાય છે, પાક બધું જ બગડે છે. गुजरात के अहमदाबाद में संस्कार भारती गुजरात प्रांत द्वारा मारी गुणवंती गुजरात संस्कार उत्सव 2024 का आयोजन कर गुजरात के अग्रणी कलाकारों को सम्मानित किया गया. गुजरात राज्य संगीत नाटक अकादमी के सहयोग से रंगमंच, ललित कला और साहित्य को समर्पित अखिल भारतीय संस्था संस्कार भारती गुजरात प्रांत द्वारा एक विशेष आयोजन अहमदाबाद की डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में किया गया. मारी गुणवंती गुजरात संस्कार उत्सव 2024 अंतर्गत संस्कार सम्मान 2024 और संस्कार विभूषण मानपत्र अर्पण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें गुजरात राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, राज्य मंत्री ऋषिकेश पटेल, मुलू बेरा समेत के अग्रणियों की उपस्थिति में अलग अलग कला क्षेत्र में महारत रखने वाले कलाकारों को सम्मानित किया गया, जिसमें पिनाकी मेघानी, डॉक्टर विनायक रावल, अरविंद बारोट, डॉक्टर जानकी मिठाईवाला, लेफ्टिनेंट डॉक्टर सतीश चंद्र व्यास, पंकज पाठक, ललिता खोड़ादरा, भारती व्यास समेत के कई कलाकारों के साथ साथ वडोदरा के भूअलंकरण राजेंद्र पुरुषोत्तम डिंडोरकर को भी सम्मानित किया गया. गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के हाथों ये सम्मान उन्हें प्रदान किया गया. विभिन्न क्षेत्र के कलाकारों की फहरिस्त में वडोदरा के रंगोली आर्टिस्ट राजेंद्र डिंडोरकर ने रंगोली आर्ट को एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया है. वडोदरा में सालों से रंगोली की प्रदर्शनी करने वाले राजेंद्र डिंडोरकर का स्वास्तिक रंगोली कलाकार ग्रुप है, जो देश विदेश में तरह तरह की रंगोली बनाकर वडोदरा का नाम हमेशा ही रोशन करता रहा है. पिछले कई वक्त से राजेंद्र डिंडोरकर पानी के ऊपर रंगोली, पानी के नीचे रंगोली, पानी के बीचों बीच रंगोली, कांच पर रंगोली, मूविंग रंगोली, 3D रंगोली जैसे कलात्मक प्रदर्शन से वडोदरा को गौरवान्वित करते रहे हैं. ये सम्मान मिलने पर राजेंद्र डिंडोरकर ने VNM टीवी के साथ अपनी खुशी साझा की. अखिल भारतीय संस्था जो है संस्कार भारती गुजरात प्रांत की जो है कि उन लोगों ने एक मारी गुणवंती गुजरात संस्कारोत्सव 2024 का आयोजन किया हुआ है. तो उसमें संस्कार सम्मान 2024 एवं संस्कार विभूषण मानपत्र से कलाकारों का सम्मान करने वाले हैं. उसमें से बड़ौदा से मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है और उसमें भी भू अलंकरण जो कैटेगरी है
जिसको रंगोली कला कहते हैं। तो उस रंगोली कला का जो कला साधक है, तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि इतने सालों से जो हम लोग ये कला करते आए हैं, तो उसका जो यानी वो बोलते हैं ना कि बस काम करते रहो अपने आप, कहीं कहीं से आपका एक ये मिलता ही रहेगा। तो ये जो सम्मान जो है वो कला जो है वो तो हमेशा क्या बोलते हैं कि आर्टिस्ट ऑलवेज हंग्री फॉर एप्रिसिएशन। तो वो जो एप्रिसिएशन हो रहा है उससे हमारी जो ताकत है कला की वो और बढ़ेगी और हम और काम करते रहेंगे। मैसेज तो वही है ना, जो रंगोली है वो जो भू अलंकरण जो इसमें भू अलंकरण कहा जाता है। तो जो जमीन है उसकी भी पूजा होती है ना। तो जो पंचमहाभूतों का एक जो ये है कि जमीन आकाश, जमीन, अग्नि, वायु वगैरह जो होता है, तो उसमें से जमीन की पूजा करना वो तो सदियों से चला आ रहा है ना। और जैसे बोलते हैं कि जो 62-64 कलाएं हैं भारतीय सांस्कृतिक, उसमें से ये रंगोली कला है वो अग्रस्थान पे विराजमान है। तो उसी को हम लोग सिर्फ उसको कंटेम्पररी रूप दे रहे हैं, मटेरियल तो वही है और वही करके हम लोग बस समाज के सामने रखते हैं और समाज उत्साहित आनंदित होता है, तो उससे हम लोग बहुत खुश होते हैं। जहां एक और पढ़े लिखे और लाखों रुपए लेते वडोदरा कॉर्पोरेशन के अधिकारी और जनप्रतिनिधि फ्लड कंट्रोल में फेल रहे, वहीं वडोदरा का एक गांव ऐसा भी है जहां 10वीं पास सरपंच महज 2000 रुपए में फ्लड कंट्रोल करने में कामयाब रहे। धुआंधार बारिश से वडोदरा शहर के साथ साथ जिले के गांव में भी हाल बेहाल हो गए थे। ज्यादातर नदी, नाले, तालाब छलक जाने से सभी गांव में पानी भर गया था। ऐसे में वडोदरा की सीमा से सटे हुए खटम्बा गांव के सरपंच अपने गांव को बाढ़ से बचाने में सफल रहे। सिर्फ 10वीं पास सरपंच कमलेश वालम ने 1 साल पहले कुछ ऐसी कार्यवाही की थी कि यहां पानी भरते ही उतर जाता है। વરસાદમાં પાણી ગામમાં નથી નડતું કોઈ નહીં. કયા કારણે પાણી? એ ગામમાં ગટર લાઈન નાખેલી છે એટલે ગામનું પાણી જે વરસાદનું પડે છે તે ગટર લાઈનમાં જતું રહે છે અને બહારથી પાણી આવે છે તે તળાવમાં ભરાઈ જાય છે એટલે વરસાદનું પાણી ગામમાં નડતું નથી કોઈને. આ તળાવનું પાણી આ વખતે છલકાવીને ગામમાં આવ્યું છે એવું ખરું? ના, નથી. કયા કારણે નથી આવ્યું? કારણ કે પહેલા વરસાદે પાણી ભરાઈ ગયું એટલે પારો બાંધી દીધો ત્યાં, એટલે આગળનું પાણી તળાવમાં આવ્યું જ નહીં, એટલે પાણી અટકાઈ ગયું એટલે વધનું પાણી આવ્યું નહીં અંદર ને પાણી છલકાયું પણ નહીં અને ગામને નુકસાન બી નહીં થયું. તો સરપંચ વિશે શું કહેશો આપ? સરપંચ અમારા ગામના સારા છે, 100 દરજે સારા છે. આટલા સરપંચો ગયા પણ આ વર્ષે અમારા સરપંચ સારા છે ને ગામને સુધાર્યું છે. ગામ અમારું ગામ ગોકુળિયું ગામ બનાવ્યું છે. બહુ જ કર્યું. બ્લોક નાખ્યા ને કઈ બધું આખા ગામની શોભાઓ બધી બહુ કરી. હા, પાણીની સુવિધા પહેલી તો પાણીની સુવિધા સારી કરી છે. પાણીની બહુ પીવાનું પાણીની બહુ તકલીફ હતી અમારે. પાણી ક્યાં લેવા જવું હતું પહેલા? પહેલા તો અમે દૂર લેવા જતા હતા. ત્યાં જઈએ તો પાણી લાઈટ ના જાય તો બેડો મૂકીને પાછા આવીએ, પાછા ફરી જઈએ. અમારો આખો દિવસ પાણીમાં જતો હતો. અત્યારે તો શાંતિ છે, ઓસિંગે પાણી છે અમારે. અહીંયા ટ્યુબવેલ બનાવે છે તો અડધી રાતે પાણી જોઈએ તો અમારે પાણીના ઠંડુ જ પાણી નીકળે છે અંદર. પીવા लायक सरस पानी છે અમને વાપરવાની પણ અમને શાંતિ છે. दूसरी ओर तालाब ओवरफ्लो होकर खेत में पानी भर जाए उससे पहले सरपंच द्वारा खास कार्यवाही की गई, जिससे कांस का पानी भी तालाब में डाइवर्ट नहीं हुआ और तालाब बच गया। અમારે પહેલા 15 દિવસ પહેલા જ વરસાદ પડેલો ફૂલ,
એમાં અમારું તલાવ એકદમ ટોપઅપ થઈ ગયેલું. હવે અમે બીજું વધારાનું પાણી તલાવમાં આવે એ તો તલાવ ફાટે અને ગામમાં ઘૂસી જાય. એટલા માટે અમે છે ને નહીં જેવા ખર્ચની અંદર અમે આગળ પાર બાંધી દીધી અને પાણી ડાયવર્ટ કરી દીધું અને પછી બિલકુલ તલાવમાં પાણી આવ્યું જ નહીં. એટલે તલાવમાં અમે પહેલેથી જ બાંધી દીધું એટલે બિલકુલ પાણી જ ના આવ્યું અને ગામવાળાને એકદમ શાંતિ થઈ ગઈ. જ્યારે આ પાર બનાવવા માટે તમારી સાથે કેટલા સભ્યોને સાથે રાખીને આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો? ના, અમારા ગામ લોકો અમારી જોડે હતા 5-6 જણ અને અમને ખબર હતી કે હવે વરસાદ વધુ આવશે તો તલાવ ભરાઈને ફૂલ છલકાશે અને ફાટી જશે એટલે અમે તરત પારો મારી દીધો. આ ગામની અંદર બીજી શું સુવિધા હતી કે એના કારણે આ પાણી અહીંયા ના ભરાય એવું તો શું કામ કર્યું હતું? ખાસ કરીને ગામમાં અમે છે ને એવી ગટર લાઈન બનાવી છે અમે. તો એ ગટર લાઈનના એવા ઢાંકણા અમે નાખ્યા છે કે કોઈ બી ફરિયામાંથી પાણી આવે એટલે એ ગટરમાં જતું રહે અને બાયપાસ થઈ જાય મોટી ગટરમાં જઈને. અને તલાવનું તો જે હતું કે તલાવનું તો પહેલેથી બાંધી દીધું એટલે તલાવને ટોપઅપ થઈ ગયું એટલે પછી ભરવા ના દીધું એટલે બાયપાસ થઈ ગયું પાણી. હું SSC બનેલો છું અને આ બધી આઈડિયા ગાયકવાડ વખતમાં મેં જોયેલી છે. વાડીમાં ગાજરાવાડી, આખા વાડી, ચોખંડી એ બધે એવી ગટરો મેં જોયેલી છે ગાયકવાડી ટાઈમની. એમાં એક જારીવાળી હતી લોખંડની, પણ આપણી પાસે એટલું બજેટ ના હોય એટલે મેં સિમેન્ટની ચેમ્બર બનાવીને ખોલવાળી બનાવી એટલે દરેક ફરિયામાંથી પાણી આવે એટલે એ ચેમ્બરમાં જઈ અને મોટી ગટરમાં જતું રહે અને 10 જ મિનિટની અંદર પાણી નીકળી જાય. 10-15 મિનિટમાં સાફ થઈ જાય પાણી. આ જે બધો ખર્ચો કર્યો ગામમાં તો સરકાર તરફથી કેટલી ગ્રાન્ટ મળે છે કે પછી તમારા? સરકારે કોઈ ગ્રાન્ટ નહીં આલી. આ ગામના વેરો અને જે સોસાયટીમાંથી વેરો મળ્યો એના स्वभंडोल में आ काम करेल छे। गुजरात के भावनगर जिला के कोलियाक में निष्कलंक महादेव मंदिर में भादो महीने की अमावस्या पर भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। भावनगर जिले के कोलियाक में समंदर किनारे पर समुद्र में स्थापित 5 शिवलिंग निष्कलंक महादेव के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ समुद्र में करीब 1 किलोमीटर दूरी पर निष्कलंक महादेव विराजमान है। समंदर में भाटे के वक्त ही महादेव के दर्शन के लिए जाया जा सकता है। यहाँ समुद्र में भरती के साथ ही शिवलिंग समुद्र के पानी में डूब जाता है और समुद्र का पानी कम होने पर ही शिवजी भक्तों को दर्शन देते हैं। सोमवती अमावस्या के मौके पर आज बड़ी संख्या में लोग निष्कलंक समंदर किनारे पर उमड़ पड़े। निष्कलंक महादेव का इतिहास है कि पांडवों ने महाभारत के युद्ध के बाद 100 कौरवों और लाखों सैनिकों को मारने का पाप धोने के लिए यहाँ 5 शिवलिंग की स्थापना कर पूजा की थी और तभी से लोग भी यहाँ शिवलिंग की पूजा कर अपने पाप धोने के लिए समुद्र में डुबकी लगाकर स्नान करते हैं। ભાવનગર તાલુકાનું કોળિયા દરિયાકાંઠા નજીકનું નિષ્કલંક મહાદેવનું મંદિર છે, જ્યાં દર ભાદરવી અમાસ એટલે કે શ્રાવણ વદ અમાસને દિવસે મેળો ભરાય છે। અને જ્યારે એમ કહેવાય છે કે પાંડવ અને કૌરવનું યુદ્ધ થયા પછી પોતાના પિતરાઈઓની હત્યાનું પાપ પાંડવોની માથે લાગેલું, ત્યારે કૃષ્ણ ભગવાનને એમણે આનું નિવારણ પૂછ્યું। ત્યારે કૃષ્ણ ભગવાને એમ કીધું કે તમે એને ધજા આપી અને એમ કીધું કે આ ધજા લઈને તમે હાલ્યા જાઓ અને જ્યારે આ ધજા જે જગ્યાએ સફેદ થઈ જાય ત્યાં તમે માનજો કે તમારા પાપનું નિવારણ થઈ ગયું। એટલે વિચરતા વિચરતા પાંડવો જ્યારે એમ કહેવાય છે કે અહીંયા આવ્યા ત્યારે આ જગ્યા ઉપર પાંડવોની ધજા છે એ સફેદ થઈ ગઈ। આ ધજા સફેદ થઈ ગઈ એટલે એમણે માન્યું કે પોતાના જે પિતરાઈઓની હત્યાનું પાપ છે એનું નિવારણ થઈ ગયું। એટલે ત્યારે પાંડવોએ 5 ભાઈઓએ પોતપોતાના અલગ શિવલિંગ એટલે 5 શિવલિંગની અહીં સ્થાપના કરી। દિવસમાં 2 વખત ભરતી ઓટ આવે છે ત્યારે આ શિવલિંગ ડૂબી જાય છે અને જ્યારે ઓટ આવે ત્યારે આ શિવલિંગના દર્શન થાય છે। લગભગ 139 વર્ષથી ભાવનગર રાજ્યની સ્થાપના થઈ ત્યારથી ભાવનગર મહારાજા સાહેબ દ્વારા ભાદરવી અમાસ એટલે કે શ્રાવણ વદ અમાસને દિવસે પહેલી ધજા ભાવનગર સ્ટેટની ચડે છે, ત્યારબાદ બીજા લોકો ઘણા બધા લોકો અહીંયા ધજા ચડાવે છે। અને અમાસની આગલી રાત્રે અહીંયા કોળિયાક ગામ અને દરિયાકાંઠે એક ભાતીગળ મેળો છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી પરંપરાગત રીતે લોકમેળો યોજાય છે।
गुजरात की गड्ढा नगरी वडोदरा में इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़ रहे हैं कि इसमें बड़े बड़े वाहन भी फंस रहे हैं। वडोदरा इन दिनों गड्ढों की नगरी बनती जा रही है। वडोदरा के जयरत्न बिल्डिंग निकट एक आइसर टेम्पो के एक ऐसे ही बड़े गड्ढे में गिरने की खबर सामने आई, जहां गटर लाइन बैठ जाने से गाड़ी गड्ढे में धंस गई। મોટી ગાડી ફોર વ્હીલની ગાડી અંદર જતી રહી છે. કદાચ પાણી બાણી ભરેલું હોય, વરસાદ ચાલુ હોત તો કેટલામાં નુકસાન થાત. કોઈ બાળક પડી જાત, કોઈ પણ વ્યક્તિ અમારા વિસ્તારનો અંદર પડી જાત તો કેટલું તકલીફ થઈ જાત. એટલે કમિશનરશ્રીને અમારી એટલી જ માંગણી છે કે જે વખત વરસાદી ગટર હોય કે પાણીની લાઈનની કેબલ નાખવાની જે કામગીરી કરી છે એ કામગીરી કર્યા પછી જે યોગ્ય રીતે પુરાણ કરવાનું હોય, એને ગ્રાફ્ટિંગ કરવાનું હોય, પણ એ કામગીરી ન કરવાના લીધે એને ખરેખર એમાં વધારે ખર્ચો થાય એટલે ભ્રષ્ટાચાર કરવાનો હોય એટલે એ કામગીરી ન કરી એના લીધે પરિસ્થિતિ એવી છે કે 12 ફૂટ જેટલો મોટો ભૂવો પડી જાય. ને જે પણ ઇજારદાર હશે, કમિશનર સાહેબને અમારું એટલું જ કહેવું છે કે જે પણ ઇજારદાર હશે એને વહેલી તકે બ્લેકલિસ્ટ કરો, એની તપાસ કરો અને ફરી અમારા વિસ્તારમાં કોઈ પણ જગ્યા આવી રીતે હલકી કક્ષાની ગુણવત્તા વાળું કામ ના કરે એનું ખાસ ધ્યાન રાખો, एवी हमारी मांग है। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए VNM टीवी। नमस्कार।